Hello students, so this is the revision video for class 12 since your board exam is on 5th of March, which is like only 3 months, hardly 3 months away. So you have to start revising, start preparing now only. If you have not started studying any of the chapters, don't worry, this we are going to start a series, and this is the first video in the series where we will cover all the chapters from the very basics. So we will read the chapters, cover the basics, start with the questions that are important, topics that are important, and we'll also try to solve some pre-board papers and past year papers. So this is the first chapter that we are starting with, chapter 1, variation in psychological attribute. Now these are the topics that are covered in this video, and if you look carefully and if you have studied this chapter before, you know that this chapter can be divided into 3 parts. The first part is the beginning of the chapter, which is still assessment. Now this is not that, these topics are not that important, they are only required to build the basics, understand the basics. But the second part, which is the theories, is very very important. मतलब if you don't understand any of these theory, you should revisit the chapter, you should watch the video again, because see, these theories ये MCQ में भी आते हैं, they come in case, the case based questions are also based on some of these theories. So these 5-6 theories are the favorite topic of CBSE. So you should in all the chapters, in personality, in chapter 4, in chapter 5, जहाँ पे भी theory है ना, you should know all the theories by heart, because question solve करने में वही help करेंगे. And the subjective questions, 5 marker 6 marker question, 5 marker तो है नहीं तुम्हारे, 6 marker and 4 marker question, they are based on these topics only. So अगर तुमने theories अच्छे से कर ली ना, तो you'll get good marks in your board exam. तो these are very important. Then the rest of the topics that follows, ये third part में आ गए. So ये हम इसी order में करेंगे, starting from the title. Chapter is variation in psychological attribute. Now variation का मतलब क्या होता है? Variation means differences. Differences तो किसी भी चीज़ में हो सकते हैं ना, जैसे किसी की height अलग होती है, किसी के कपड़ों का कलर अलग होता है, किसी का इंटरेस्ट अलग होता है. यहाँ पे हम कौन सा डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं? यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, मतलब स्पेसिफिकली जो हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे पर्सनालिटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, वैल्यूज हो गए, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, इनमें जो डिफरेंसेस आते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, अब देखते हैं वो डिफरेंसेस को हम स्टडी कैसे करते हैं. सो इफ यू टेक आउट योर बुक्स बिफोर moving further, take out your book, take out a rough notebook and start writing also, or start marking in your book. If you look at the very first chapter in your book, very first page of the first chapter in your book, तो उसमें ना 2 underlined highlighted words हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड सिचुएशनिज्म. तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? सी, जब तुम 2 लोगों को देखते हो, खुद को देख लो, अपने सिबलिंग्स को देख लो, अपने मम्मी पापा को देख लो, तो उनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे उनकी हाइट हो गई, वेट हो गया, स्ट्रेंथ हो गई, बॉडी कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, सब कुछ अलग अलग होता है ना, सेम तो नहीं होता. तो वैसे ही जैसे हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर करते हैं, हमारे मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स से साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो डिफर करते हैं ना. जैसे हर कोई सेम लेवल का इंटेलिजेंट नहीं होता, हर किसी की पर्सनालिटी आउटगोइंग नहीं होती, एक्सट्रोवर्ट नहीं होती, या हर किसी की इंट्रोवर्ट नहीं होती. सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, आईक्यू अलग होता है, ईक्यू अलग होता है. सो उन्हीं डिफरेंसेस को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डेफिनेशन क्या हो गई? डिस्टिंक्टिवनेस और वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स. मतलब लोगों के जो भी उनके अंदर क्वालिटीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उनका जो बिहेवियर होता है, उसमें जो वेरिएशन होती है ना, उसमें जो डिफरेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस. नाउ सब अपना अपनी पर्सनालिटी, अपने आईक्यू, अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक में डिफर करते हैं. बट कई बार ऐसा होता है कि even if they vary in their behavioral pattern and characteristics, they still behave in a very same manner. For example, you have your class है ना, you have a strength of what 30 to 40 students in your class. सबकी पर्सनालिटी अलग होगी, सबका वे ऑफ बिहेविंग अलग होगा. बट इमेजिन दैट यू वर ऑल तुम्हारा फ्री पीरियड था एंड यू वर ऑल मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस. सम स्टिल कुछ लोग शांत बैठे थे, बट एंटायर क्लास वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस एंड सडनली प्रिंसिपल आ गई. तो क्या तुम सारे उस टाइम पे सेम तरीके से बिहेव करोगे? नहीं करोगे. सो दैट शोज कि सॉरी, तो तुम सारे उस टाइम पे सेम तरीके से बिहेव करोगे? ऑब्वियसली, बिकॉज प्रिंसिपल आई है. तो यू विल ऑल बी क्वाइट. ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम उस टाइम पे भी शोर मचाते रह जाओगे, या फिर 2 बच्चे चुप हो जाएंगे, बाकी शोर मचाते रह जाएंगे. नहीं, बिकॉज दैट इज अ सिचुएशन जिसका फोर्स इतना स्ट्रांग है कि तुम सबके बिहेवियर पैटर्न को वो अलाइन कर देता है, तुम सबके बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करता है. सो सम साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट सिचुएशन इज अ पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू विच जो सिचुएशन या जो सर्कमस्टांसेस जिसमें हम होते हैं, वो उस इंसान के बिहेवियर को बहुत हाई डिग्री में इन्फ्लुएंस करता है. एंड एक एग्जाम्पल तो इसका मैंने दे ही दिया. दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ? इमेजिन कि एक पर्सन है एंड ही हैज़ अ वेरी अग्रेसिव टेंडेंसी, मतलब वो बहुत गुस्से वाला इंसान है, अग्रेशन शो करता है हमेशा. बट जब भी वो अपने बॉस के प्रेजेंस में होता है, तो वो क्या हो जाता है? बहुत शांत हो जाता है, बहुत काम हो जाता है, बहुत सबमिसिव मैनर में करता है. तो दैट शोज कि उसका जो बॉस है, द प्रेजेंस ऑफ बॉस इज अ सिचुएशन और अ सर्कमस्टेंस, और उस सर्कमस्टेंस ने उसके बिहेवियर को, अग्रेसिवनेस को कम कर दिया. सो दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशन. तो समटाइम्स ये सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस इतने पावरफुल होते हैं कि वो उस पर्सन के इंडिविजुअल ट्रेट्स को सप्रेस कर देते हैं. नथिंग नथिंग टू बी वरीड अबाउट. बहुत सिंपल सिंपल 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब लोग कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे अलग होते हैं. सिचुएशन मतलब जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. नाउ
अब तुमने ये देख लिया कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट मतलब इंसान के जो मेंटल एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होता है। अब उसको तुम मेजर कैसे करोगे? सो इफ आई टेल यू कि मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं एंड आउट ऑफ दोस 30 स्टूडेंट एक बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा आउट गोइंग है, मतलब उसको तुम किसी के साथ भी बिठा लो वो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है। अब मैंने कैसे ये चीज़ असेस करी, मैंने कैसे ये चीज़ मेजर करी कि दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज़ वेरी आउट गोइंग और वेरी सोशल, ऑब्जर्व करके करी है ना। सो असेसमेंट का मतलब ही यही होता है। असेसमेंट मतलब मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी पर्सन का जब तुम उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर कर रहे हो या इवेलुएट कर रहे हो और उसको तुम नाम दे रहे हो, उस इवेल्युएशन को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं असेसमेंट। अब असेसमेंट जो होता है वो दो तरीके से कर सकते हो तुम, फॉर्मली भी कर सकते हो और इनफॉर्मली भी कर सकते हो। तो जो फॉर्मल असेसमेंट होते हैं ना वो एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। बट जो इनफॉर्मल होते हैं वो केस टू केस वेरी करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने तुम्हें बताया कि दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इन माय क्लास ही इज वेरी आउटगोइंग, वेरी सोशल, तो यहाँ पे मैंने कौन सा असेसमेंट किया है? यहाँ पे मैंने इनफॉर्मल असेसमेंट किया है, क्योंकि मैंने उस पर्टिकुलर केस को, उस पर्टिकुलर इंसान को सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट किया है, उसके बिहेवियर को, और उसको ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्वेशन कम्स अंडर इनफॉर्मल असेसमेंट, ठीक है। अब ये हम डे टू डे लाइफ में अपने बहुत यूज़ करते हैं। तुम आसपास चलते फिरते लोगों से बात करते हो, क्लास में लोगों से बात करते हो, स्कूल में लोगों से इंटरेक्ट करते हो, और तुम उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ अपने कंक्लूजन पे आते हो कि दैट पर्सन इज शाय, दैट पर्सन इज आउटगोइंग, दैट पर्सन इज फेक। तो वो तुम्हारा इनफॉर्मल असेसमेंट हो गया। और फॉर्मल असेसमेंट तब होता है जब तुम एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज टूल को यूज़ करते हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ करते हो या इंटरव्यू को यूज़ करते हो, और फिर बताते हो कि उस पर्सन की टेंडेंसी कैसी है, राइट। सो दिस इज असेसमेंट। की असेसमेंट होता क्या है? असेसमेंट इज द मेजरमेंट और इवैल्यूएशन ऑफ अ पर्सन और इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, एंड दो तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। अब असेसमेंट तुम कौन से पर्पस के लिए कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि हम इन दोनों में से कौन सा टूल या कौन सा मेथड को यूज़ करेंगे। नाउ असेसमेंट हो गया। नाउ द थर्ड टॉपिक इज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ये जो हेडिंग है ना इसमें से असेसमेंट का आते हैं ना, दिस इज जस्ट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो होते हैं ना इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना। जितने भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो लीनियर नहीं होते, यूनिडायमेंशनल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस है तो वो हाई या लो होगा तो उससे बाकी चीज़ें भी तुम असेस कर सकते हो। ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स वे में इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इन साइकोलॉजिकल जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड डिफरेंट टर्म्स में, डिफरेंट डायमेंशंस में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हेंस दे आर मल्टी डायमेंशनली एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, ठीक है। अब अगर तुम्हें एक पर्सन को कंप्लीटली जानना है, एक पर्सन का कंप्लीट असेसमेंट करना है, तो उसको अलग अलग डोमेन्स पे तुम्हें चेक करना होगा। उसकी पर्सनालिटी देखनी पड़ेगी, उसका आईक्यू देखना पड़ेगा, उसका ईक्यू देखना पड़ेगा, उसका एट्रीब्यूट एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम उसका चेक करोगे तब तुम्हें उस इंसान के कॉग्निटिव, इमोशन और सोशल फैक्टर्स सारे के सारे कंप्लीटली समझ में आएंगे, ठीक है। तो दिस वॉज द बेसिक्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट नाउ कम्स द मेन पार्ट जहाँ पे तुम्हें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि हर चैप्टर में ना ये तुम पर्सनालिटी चैप्टर 2 में पढ़ोगे, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के बारे में इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ोगे, और इंटेलिजेंस के बारे में तो पूरा चैप्टर है ही। तो यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। नाउ फर्स्ट एप्टीट्यूड इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? इट इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज द रिसोर्सेज फॉर आवर बेनिफिट। मतलब ग्लोबल मतलब टोटल, तो एक इंसान की पूरी कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी, जिससे वो आसपास की दुनिया को समझता है, लॉजिकली चीज़ों को सोचता है, और उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उसके पास जो भी चीज़ें हैं, उसको वो इफेक्टिवली यूज़ कर पाता है जब उसके पास कोई भी चैलेंज आता है, उसको कोई भी चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो उसी को तो हम इंटेलिजेंस कहते हैं कि वो इंसान अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पास जो भी चीज़ है उसको यूज़ करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए, दिन दुनिया की उसको खबर हो, चीज़ें समझ में आ जाए, और लॉजिकली वो हर चीज़ को सोच सके। दैट इज व्हाट इंटेलिजेंस इज, राइट। एंड दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट क्या करता है? वो उस पर्सनालिटी की टोटल कैपेसिटी को, ग्लोबल कैपेसिटी को, और कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, सोचने की क्षमता को मेजर करके बताता है, एंड बताता है कि वो स्कूल से कोई बेनिफिट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। गिवन कि अगर उसका आईक्यू हाई है तो उसको स्कूल से बेनिफिट होगा, अगर आईक्यू लो है तो ही विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दैट वेल इन स्कूल। तो ये आईक्यू टेस्ट तुम्हें बताता है, ठीक है। एंड जनरली पीपल हु स्कोर लो ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट वो स्कूल में उतना अच्छा नहीं करते हैं। तो ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हो गई। सेकंड एट्रीब्यूट है तुम्हारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब एक पर्सन की हिडन पोटेंशियल, जो हमें ये बताता है कि वो स्किल एक्वायर कर सकता है कोई आगे जाके या नहीं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने एक बच्चे को ऑब्जर्व किया और मुझे पता चला देख के उसको कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ना सिंगिंग को लेके पोटेंशियल है, अगर इसको ट्रेनिंग दोगे तो ये कर लेगा आगे जाके। सो दैट मीन्स कि उसके अंदर म्यूजिकल एप्टीट्यूड है, ठीक है। हिडन टैलेंट जो हिडन है, लेकिन तुम उसको ट्रेनिंग दोगे तो वो निकल के आएगा, अपने आप नहीं आएगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग से बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली कोई डांसर है, ठीक है, पोटेंशियल डांसर है, उसके अंदर अंडरलाइन पोटेंशियल है डांसर का, वो कर सकता है, लेकिन वो करेगा कब? जब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे तो वो स्किल को एक्वायर करेगा। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइन पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग अ स्किल। अंडरलाइन मतलब हिडन पोटेंशियल। अब एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं बहुत सारे, जो कोई भी तुम एट्रीब्यूट देखोगे ना उसका टेस्ट होता ही होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का पर्पस क्या है? वो बताता है कि उस इंसान के अंदर क्या टैलेंट है, क्या पोटेंशियल है, जिसके फील्ड में हमें उसको स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब जैसे तुम ये टेस्ट कहाँ पे काम आते हैं? तुम जब 10th क्लास में होते हो तो 10th के बाद क्या करना होता है? हमें 11th में स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है। तो जब स्ट्रीम हम चूज कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है ध्यान में रखना कि तुम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग स्ट्रीम चूज करो। अगर तुम्हारे अंदर क्रिएटिव साइड ज़्यादा है ना, और कंप्यूटेशन स्किल्स तुम्हारे अंदर नहीं है उतनी, और तुमने साइंस ले ली तो तुम उतना अच्छा नहीं कर पाओगे।
क्योंकि तुम्हारा एप्टीट्यूड नहीं है उसमें, राइट। सो एप्टीट्यूड टेस्ट हमें हेल्प करता है एक इंसान को गाइड करने में कि उसको कौन सा करियर चूज करना चाहिए, कौन सा एनवायरमेंट चूज करना चाहिए, सो दैट उसको जब ट्रेनिंग मिले प्रॉपर उस एनवायरमेंट में या उस स्किल में, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सके। नीचे इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि अ पर्सन विद हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड कैन प्रॉफिट फ्रॉम अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड डू वेल एज एन इंजीनियर। अगर उसके अंदर मैकेनिकल एप्टीट्यूड है तो वो अच्छा इंजीनियर बन सकता है। अगर किसी के अंदर हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड है तो उसको मैं ट्रेनिंग दूंगी तो वो अच्छा राइटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड हो गया। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब एक इंसान की का प्रेफरेंस कि वो आगे जाके कौन सी एक्टिविटी में एंगेज करना चाहता है उसको। अब देखो एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। एप्टीट्यूड मतलब उसके अंदर उस चीज़ को लेके पोटेंशियल है, उसके अंदर स्किल है। लेकिन इंटरेस्ट का मतलब है स्किल हो चाहे ना, उसको वो चीज़ करना पसंद है, वो चाहता है वो एक्टिविटी में पार्ट लेना, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर दैट एक्टिविटी। नाउ इंटरेस्ट का भी असेसमेंट होता है, टेस्ट होता है, एंड इट टेल्स कि तुम किस चीज़ को कंफर्टेबली परस्यू कर सकते हो। अब इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन विच ऑफ दीज इज मोर इंपॉर्टेंट टू अटेन सक्सेस, टू गेन सक्सेस इन फील्ड, तो तुम क्या बोलोगे? एप्टीट्यूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? थिंक अबाउट इट। वीडियो पॉज करके सोचो एंड बताना मुझे, ठीक है। तब तक मैं बताती हूँ आंसर। सो इफ़ यू चूज अ फील्ड बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड लेकिन तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या तुम उतना हार्डवर्क करोगे जितना तुम तब करते जब तुम्हारा इंटरेस्ट होता? नहीं करोगे, राइट। लेकिन अगर तुम ऐसा फील्ड चूज कर रहे हो जिसमें एप्टीट्यूड तो नहीं है, तुम्हारे अंदर स्किल तो नहीं है, लेकिन तुम्हें बस करना पसंद है, मतलब मैंने सिंगिंग चूज कर ली मुझे क्योंकि सिंगिंग करनी पसंद है, बट मुझे गाना आता नहीं है, मुझे सुर ताल रिदम का कोई कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो क्या मैं अच्छी सिंगर बन पाऊंगी? नहीं, बिकॉज मेरे अंदर एप्टीट्यूड नहीं है। सो बोथ इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन गेनिंग अ पर्टिकुलर स्किल और अटेनिंग सक्सेस, ठीक है। एक से काम नहीं चलता। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होती है? एक रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक जो इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। उसके अंदर क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसका बिहेवियर पैटर्न डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुट मी इन अ रूम फुल ऑफ स्ट्रेंजर्स, ठीक है, अगर मेरी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है तो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो ना कि मैं एक कोने में जाके बैठ जाऊंगी या मैं सिर्फ अपने फ्रेंड के पास जाके उसी से बात करूंगी। ऑन द अदर हैंड अगर मेरी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट है तो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मैं सबसे बात करने की कोशिश करूंगी, नए नए लोगों से इंटरेक्ट करूंगी, एंड दैट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट। सो कोई भी ट्रेड, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो तुम्हारे अंदर है और तुम्हें वो दूसरों से अलग बनाता है और वो तुम्हारा बिहेवियर प्रिडिक्ट करने में लोगों की हेल्प करता है, तो वो तुम्हारी पर्सनालिटी हो गई। एंड पर्सनालिटी का असेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट योर सेल्फ, तो तुम्हें अपने बारे में चीज़ें पता चलती है। सेकंड बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स यू चूज अ करियर पाथ, क्योंकि अगर मेरी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है और मुझे सजेस्ट कर रहे हैं लोग कि गोइंग टू अ फील्ड जो एक्सट्रोवर्ट्स के लिए अच्छी है, जैसे एक्टिंग में चले जाओ, डिप्लोमेसी में चले जाओ, तो क्या मैं उसमें उतना अच्छा कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरी पर्सनालिटी में वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है। मुझे अकेला रहना पसंद है, तो मुझे कह रहे हो कि डेली सुबह उठ के मैं 50 लोगों से मिलूं या इंटरेक्ट करूँ, सो वो मेरे लिए उतना अच्छा नहीं होगा। सो पर्सनालिटी असेसमेंट भी करियर गाइडेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट वैल्यूज़। वैल्यूज़ जो है बहुत सिंपल सा है कि वो बिलीव्स जो मेरा आइडल मोड ऑफ बिहेवियर बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑनेस्टी में बहुत बिलीव रखती हूँ, तो ऑनेस्टी मेरा एक बिलीव हो गया कि आई बिलीव एवरीवन शुड बी ऑनेस्ट, और उससे मेरा बिहेवियर कैसे डिसाइड होगा? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगी, लोगों को मैनिपुलेट नहीं करूंगी। सो बिलीव्स दैट डिसाइड योर कोड ऑफ कंडक्ट, वो वैल्यूज़ हो गए। नाउ असेसमेंट मेथड्स। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि हमने पढ़ लिया कि वेरिएशंस क्या होती है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और उनको असेस कैसे कर सकते हैं। उन्हीं असेसमेंट मेथड के हम उसी असेसमेंट के हम 5 मेथड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट मेथड इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। इफ यू हैव स्टडीड इन क्लास 11, थोड़ा सा भी तुमने ध्यान से पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें तुम 11th के चैप्टर 2 में पढ़कर आ चुके हो, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी में। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज मेजर होता है जिसको यूज़ करके हम मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं। टेस्ट होता है ऐसा एक, उसके अंदर क्वेश्चंस लिखे होते हैं, क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस दिए होते हैं, तुम्हें उनमें से चूज करना होता है। फॉर एग्जांपल टेस्ट है पर्सनालिटी का, क्वेश्चन लिखा हुआ है डू यू लाइक टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, यस नो और मे बी में से तुम्हें चूज करना है, तो वो ऑब्जेक्टिव है। स्टैंडर्डाइज है क्योंकि उसके कुछ रूल्स बने हुए हैं, तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ही हो, और मोस्टली टेस्ट ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव भी होते हैं, और ये हमारे बायसेस को कम करने में हेल्प करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बहुत सारे पर्पस हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा है। कोई मेरे पास आया पर्सन कह रहा है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, तो मैं उसको डिप्रेशन का टेस्ट दे दूंगी देखने के लिए कि उसको डिप्रेशन है या नहीं है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस मतलब करियर चूज करने में, लोगों को जॉब के लिए सिलेक्ट करने में, प्लेसमेंट में, ट्रेनिंग में, इन सब में हेल्प करता है ये। नेक्स्ट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब इन्फॉर्मेशन को हम किसी पर्सन से 1-to-1 बेसिस पे सीख कर रहे हैं, तो दैट इज इंटरव्यू। मैं एक पर्सन हूँ जो तुमसे सवाल पूछ रही हूँ, तुम एक पर्सन हो जो मुझे उनका जवाब दे रहे हो, तो मैं इंटरव्यूअर हो गई, तुम इंटरव्यू ही हो गए, और उसी को हम इंटरव्यू बोलते हैं। अब इसके भी बहुत सारे पर्पसेस होता है, बहुत सारे तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल वाइवा देते हो तुम अपने प्रैक्टिकल में, तो वाइवा इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ इंटरव्यू जो 1-to-1 बेसिस पे होता है। एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यू होता है, और फॉर्मल होता है, राइट। द केबीसी देखा है तुमने, उसमें भी तो इंटरव्यू हो रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहे हो आंसर दे रहा है। पॉडकास्ट देखते हो, वो भी इंटरव्यू ही है। स्टैंडर्डाइज वो नहीं है, वो थोड़ा नॉन स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्ट्रक्चर्ड कह लो। दो तरह के इंटरव्यू होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन जो होते हैं उनका फॉर्मेट, उनका ऑर्डर और सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, और नॉन स्ट्रक्चर्ड वो होते हैं जिनका ऑर्डर चेंज होता रहता है, उनका फॉर्मेट डिसाइडेड पहले से नहीं होता है, राइट। सो ये हमारा इंटरव्यू हो गया। अब
इंटरव्यू के बाद आता है केस स्टडी। केस स्टडी इज एन इन डेप्थ स्टडी। इन डेप्थ मतलब कोई भी एक इंसान लिया हमने और उसके सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया, तो वो केस स्टडी हो गई। अब केस स्टडी में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं। इसके अंदर इंटरव्यू भी यूज़ होता है, ऑब्जर्वेशन भी यूज़ होता है, क्वेश्चनर भी यूज़ होता है, टेस्ट भी यूज़ होता है। जैसे तुमने अभी अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाई होगी, केस स्टडी प्रोजेक्ट फाइल, तो प्रोजेक्ट फाइल के अंदर तुमने क्या किया है, केस स्टडी तो करी है ना तुमने एक इंसान लिया और उस इंसान के सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में इन डेप्थ स्टडी करी और देखा कि उसको कोई डिसऑर्डर है या नहीं है। सो दैट इज अ केस स्टडी, क्योंकि तुमने उससे इंटरव्यू भी लिया, उसका भी लिया, उसके फैमिली मेंबर्स का भी लिया, उसको ऑब्जर्व भी किया, उसको टेस्ट भी दिया, है ना, और उसके बेसिस पे कंक्लूड कर दिया। सो इट इज़ वेरी डिटेल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज मैनर में किसी के बिहेवियर को रिकॉर्ड करना मतलब वीडियो पे रिकॉर्ड नहीं करना, उसको देख के ऑब्जर्व करके उसकी रिकॉर्डिंग रखना, राइट। अब ये एक उतना मतलब इट इज़ वाइडली यूज, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। फर्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि ऑब्जर्वर का कोई कंट्रोल नहीं होता इसमें, तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई कंट्रोल नहीं है। एंड सेकंड इज इंटरप्रिटेशन जो होता है, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, मतलब मैं उस बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही हूँ और एक और साइकोलॉजिस्ट उस बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है। सो हम दोनों का जो रिजल्ट है, हम दोनों का जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन जरूरी नहीं है कि सेम ही होगा। इट डिपेंड्स ऑन आर एक्सपीरियंसेस एज वेल, कि मैं उस बिहेवियर से क्या डिड्यूस कर रही हूँ और वो उस बिहेवियर से क्या डिड्यूस कर रहा है। तो हमारे खुद के ऑब्जर्वेशन, हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस, खुद के इमोशंस उस ऑब्जर्वेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उसी को हम ऑब्जर्वर बायस बोलते हैं। सो इट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड ऑब्जर्वेशन के लिए एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड इंसान चाहिए, तभी उसको समझ आएगा कि क्या ऑब्जर्व करना है और क्या नहीं करना है। ओके, नाउ लास्ट फिफ्थ इज सेल्फ रिपोर्ट मेजर। सेल्फ रिपोर्ट मेजर जहाँ पे हमें सब्जेक्ट खुद अपने बारे में बताता है और हम उसको नोट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चनर भी आता है, टेस्ट भी आता है, डायरी भी आती है। किसी भी फॉर्म में जब तुम उससे खुद का आंसर ले रहे हो तो वो सेल्फ रिपोर्ट मेजर हो गया। नाउ दिस वाज द इंट्रोडक्शन, दिस वाज द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर, जो तुम्हें पढ़ने के लिए अच्छा है, बट इसको इसके पीछे उतना पागल मत होना, क्योंकि इसमें एमसीक्यू आते हैं, ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा मेन चैप्टर शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ इंटेलिजेंस इज अ topic which has widely been studied across different countries, cultures and timeline। तो सबने, जितने लोग आए हैं, सबने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी इंटेलिजेंस की, सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया इंटेलिजेंस को लेके। एंड उनमें से हम 4 डेफिनेशंस को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सो इंटेलिजेंस की जो फर्स्ट डेफिनेशन तुम्हारी बुक में लिखी हुई है, इट इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस एक पावर है, अ पावर दैट इज यूजफुल इन परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। ठीक है, सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। नाउ परसीविंग मतलब इन्फॉर्मेशन को एनवायरमेंट से रिसीव करना एंड उसको प्रोसेस करना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मतलब उसका मतलब समझना, लर्निंग मतलब उसको याद कर लेना है, नोइंग मतलब उससे तुम क्या समझ पा रहे हो। सो एक इंटेलिजेंट इंसान वो है जिसके अंदर ये चारों चीज़ें करने की पावर है। ठीक है, एक्सटर्नल कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है, कोई भी चीज़ वो रिसीव कर रहा है, तो वो उसको परसीव करेगा, उसको लर्न करेगा, उसको समझेगा एंड उसका मतलब जानेगा। सो दिस इज व्हाट एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी tries to tell you about intelligence। now इसके बाद आता है एल्फ्रेड बिनेट। एल्फ्रेड बिनेट वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिसने इंटेलिजेंस को स्टडी करने की कोशिश करी थी। एंड उसने क्या बोला, इंटेलिजेंस सिमिलर ही है, इन दोनों में ना बहुत सिमिलरिटी है। एल्फ्रेड बिनेट ने बोला कि इंटेलिजेंस इज अ कैपेसिटी या एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। अब अंडरस्टैंड का तुम्हें मतलब पता है कि कोई भी चीज़ समझना। जज का मतलब क्या है कि तुम जितने भी तुम्हारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, तुम उसको किस तरह से समझ रहे हो, उसका मतलब क्या निकाल रहे हो। एंड रीजन मतलब लॉजिकली आर्ग्यू करना या फिर अपने तर्क वितर्क देना। ठीक है, तो इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बिनेट इज एबिलिटी टू जज वेल, रीजन वेल एंड आर्ग्यू वेल। देन वेशलर आया, वेशलर सेड कि ठीक है, दैट आई एग्री विद यू, बट इंटेलिजेंस की फंक्शनैलिटी को देखना भी इंपॉर्टेंट है, उसका काम क्या है वो देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो उसने क्या अग्री किया, उसने क्या ऐड किया, उसने बोला कि इंटेलिजेंस ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी है एक इंसान की, जो उसको रैशनली सोचने में, पर्पसफुली एक्ट करने में और इफेक्टिवली उसके एनवायरमेंट से डील करने में हेल्प करती है। ठीक है, ग्लोबल और एग्रीगेट का मतलब सेम ही होता है, टोटल। ठीक है, तो इंटेलिजेंस क्या है, एक टोटल कैपेसिटी है। टोटल कैपेसिटी किसकी, एक इंसान की, जो उसको लॉजिकली सोचने में हेल्प करेगा, पर्पसफुली एक्ट करने में हेल्प करेगा और उसके एनवायरमेंट से डील करने में हेल्प करेगा। पर्पसफुल एक्ट करने का मतलब ये है कि वो जो भी चीज़ कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। नाउ गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग आए एंड दे सेड कि ठीक है, आपके डेफिनेशन से हम अग्री करते हैं, बट उसमें एक छोटा सा सजेशन है। ही सेड कि नॉट ओनली द इंटेलिजेंट पर्सन कैन इफेक्टिवली डील विद हिज एनवायरमेंट, बट वो एनवायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई एंड शेप भी कर सकता है। तो गार्डनर ने क्या बोला कि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडेप्ट्स टू एनवायरमेंट, बट वो एक्टिवली उसको चेंज भी करता है। तो अगर मेरे आसपास की चीज़ें बदल रही है तो मैं एडजस्ट तो करूँ, अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं उसमें एडजस्ट तो कर ही लूँगी, बट मैं अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग आसपास की चीज़ों को चेंज भी कर दूँ, तभी मैं इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, सो दीज आर द 4 डेफिनेशंस जो हमारी इंटेलिजेंस की तुम्हारी बुक में दी हुई है। इसके अलावा भी बहुत डेफिनेशंस है, बट ये 4 है, और इफ़ यू सी केयरफुली ना तो बहुत सारे सेम सेम से वर्ड्स हैं इसमें, तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट,
अब हमारा आता है इंटेलिजेंस की थ्योरीज। तो दो तरह की मेन थ्योरीज है हमारी, एक आती है साइकोमेट्रिक अप्रोच और दूसरा आता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब इसको अगर मैं मोटा मोटा समझाऊँ ना, तो साइकोमेट्रिक अप्रोच का इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही है कि वो देखना चाहता है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। वो इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर को देखता है। और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का ये है पॉइंट ऑफ व्यू कि एक इंटेलिजेंट पर्सन कैसे एक्ट करता है, उसके दिमाग में क्या चलता है जब वो सोचता है। तो इसीलिए साइकोमेट्रिक अप्रोच जो होता है ना, इंटेलिजेंस को कंसिडर करता है एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटी। लेकिन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो होता है वो इंटेलिजेंस को कैसे देखता है, इंटेलिजेंस को वो देखता है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन अपनी इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को यूज कैसे कर रहा है, उसके माइंड में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। सो यहाँ पे सम को वो देख रहा है और यहाँ पे अंदर के प्रोसेसेस को देख रहा है। सो साइकोमेट्रिक अप्रोच इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल इंडेक्स, और उसी इंडेक्स को हम आईक्यू बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में वो बताता है कि हाउ डज एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स। अब अगर तुम वर्ड एक स्पेसिफिक वर्ड ढूंढ रहे हो, तो साइकोमेट्रिक अप्रोच इज स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस, और जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है वो फंक्शनल है, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शंस पे फोकस करता है। अब तुम्हारी बुक के अंदर ना 8 थ्योरीज हैं। आउट ऑफ दोस 8 थ्योरीज 5 तो तुम्हारी आती है साइकोमेट्रिक अप्रोच में, यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, आर्थर जेंसन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। और 3 तुम्हारी आती है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, पास मॉडल, ट्रायर्किक एंड गार्डनर्स थ्योरी। वन बाय वन इसको हम कर लेते हैं। ये अगर तुम्हारा आंसर आता है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन आता है तो, कि साइकोमेट्रिक, देखो साइको का मतलब होता है साइकोलॉजिकल, मैट्रिक मतलब नंबर या मेजरमेंट। तो जब हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करते हैं ना, तो वो साइकोमेट्रिक अप्रोच में करते हैं, ठीक है। सो इस अप्रोच का मेन फोकस किस पे है, मेजरिंग हाउ इंटेलिजेंट अ पर्सन इज या हाउ मच इंटेलिजेंस अ पर्सन हैज, एक इंसान के अंदर कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है। दूसरा, ये इंटेलिजेंस को क्वांटिफाई करता है, जहाँ पे मैट्रिक आ गया मतलब नंबर, तो ये सिर्फ इंसान इंटेलिजेंस को नंबर की टर्म्स में देखता है, उसको ये मतलब नहीं है कि वो काम कैसे कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग क्या हो रही है, सिर्फ नंबर्स की टर्म्स में देख रहा है, और उसी नंबर को या इंडेक्स को हम आईक्यू बोलते हैं। और इसके अंदर ये थियरीज हो गई। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच प्रोसेसिंग को देखता है, इट सीज कि हाउ आवर ब्रेन प्रोसेसेस इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप में। और इसका मेन आइडिया ये है कि इट फोकसेस ऑन हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन वर्क्स। तो ये मेंटल प्रोसेसेस पे ज़्यादा फोकस करता है। मेंटल प्रोसेसेस में क्या आते हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी वो स्टोर कर लेता है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करता है, जब जरूरत पड़ती है तो उसको कैसे रिट्राइव करता है, उनको यूज करके वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। ये इसका एग्जाम्पल किया। दिस इज अ फ्लो चार्ट। ये थेरीज आ रही है तुम्हारी साइकोमेट्रिक में, ये थेरीज आ रही है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। नाउ दिस इज नॉट रेलिवेंट। यहाँ से हमारी थेरीज शुरू होती हैं, ठीक है। पहली थ्योरी है तुम्हारी यूनिफैक्टर थ्योरी। इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट। इफ यू रिमेंबर लास्ट फ्यू स्लाइड, तो अल्फ्रेड बिनेट वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिसने इंटेलिजेंस को फॉर्मली स्टडी किया था, है ना। उससे पहले उतना ज़्यादा फॉर्मल डिस्क्रिप्शन नहीं था इंटेलिजेंस का, और जो था भी ना वो फिलोसफिकल ट्रेन में आता था, मतलब फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स के अंदर आता था। तो बिनेट ने क्या बोला, बिनेट ने बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दिया अपना कि एक इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस इज अ एबिलिटी और सेट ऑफ एबिलिटीज जो डिफरेंट इंटेंसिटी में सबके अंदर होती हैं, और वो जो एबिलिटीज हैं वो इंसान को अपने डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है, ठीक है। एंड ये जो सेट ऑफ एबिलिटीज़ है ये एक ही सेट है, मतलब इंटेलिजेंस इज़ वन थिंग, एक सेट है, एक चीज़ है जो इंसान के अंदर है, और अगर है तो वो ज़्यादा या कम है, किसी के अंदर ज़्यादा होगी, किसी के अंदर कम होगी। दैट्स वाई हम इसको यूनिफैक्टर बोलते हैं। वन सेट ऑफ एबिलिटी ना, तो वन का मतलब क्या है, यूनी, यूनी मतलब वन, और सेट मतलब फैक्टर। तो एक चीज़ है जो है तो ज़्यादा है या तो कम है, और वो इंसान को डेली लाइफ के प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प कर रही है, राइट। इसको रीड करो। बेनेट्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज रादर सिंपल एज इट अरोज फ्रॉम हिज इंटरेस्ट इन डिफरेंशिएटिंग मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट। उसका आइडिया कहाँ से आया था, उसने ये कोशिश करने की, मतलब उसने यहाँ देखा कि एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक पर्सन है वो कम इंटेलिजेंस है। अब कौन सी चीज़ है जो इन दोनों को अलग बना रही है, कौन सी चीज़ है जो ये डिफरेंस को कॉज कर रही है। सो इट इज़ दैट वन सेट, वन फैक्टर, जो इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में होगा, इसके अंदर कम अमाउंट में होगा, एंड ही कॉल दैट फैक्टर यूनिफैक्टर, ठीक है। और एंड दैट फैक्टर, उससे मतलब क्या था उसका, द सेट ऑफ एबिलिटीज जो इंसान को प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। अंडरस्टूड। नाउ आगे जाके एज साइकोलॉजी इवॉल्व्ड और भी लोग आते गए, ये मॉडल को बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। अब वो क्रिटिसिज्म के बाद आगे जाके दूसरे दूसरे मॉडल बनने लग गए, ठीक है। अब दूसरे मॉडल में जो हमारा सेकंड मॉडल है, इट इज़ टू फैक्टर मॉडल। टू फैक्टर मॉडल किसने दिया था, चार्ल्स पर्मैन ने दिया था। अब चार्ल्स पर्मैन ने बोला, उसने फैक्टर एनालिसिस किया और उसने बोला कि इंटेलिजेंस एक सेट ऑफ एबिलिटीज़ नहीं है, इंस्टेड इट इज़ देयर आर टू डिफरेंट सेट्स, ठीक है। एक सेट तो होते हैं जो जनरल होते हैं, जनरल मतलब वो कोई भी काम तुम करो वो कॉमन, हर परफॉर्मेंस में कॉमनली यूज होगा, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं नोट्स बना रही हूँ, चाहे मैं मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। ये जो जी फैक्टर है ना, जनरल फैक्टर, वो हर जगह यूज होगा। लेकिन दूसरा जो सेट ऑफ फैक्टर्स है विच इज कॉल्ड द स्पेसिफिक फैक्टर, एस फैक्टर, वो हर जगह यूज नहीं होगा, वो एक पर्टिकुलर डोमेन में यूज होगा। जैसे कि मेरे अंदर अगर एस फैक्टर है सिंगिंग को लेके, तो वो सिंगिंग में ही यूज होगा, और जरूरी नहीं है कि एस फैक्टर सबके अंदर हो। जिसके अंदर है उसके अंदर वो एबिलिटी होगी, जिसके अंदर
अंदर नहीं है, उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं होगी। अब सिंगर्स हैं, उसके अंदर सिंगिंग को लेके एस फैक्टर है, आर्किटेक्ट्स हैं, उनके अंदर आर्किटेक्ट को लेके एस फैक्टर है। ऐसे ही हर प्रोफेशन में अपना अपना एस फैक्टर होता है, बट जी फैक्टर तो सब में ही होता है। इट इज़ कॉमन टू एवरी पर्सन एंड इट इज़ कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेज। जी फैक्टर अगर हाई है तो उसका हर हर डोमेन में परफॉर्मेंस अच्छा होगा, अगर जी फैक्टर लो है तो उसका हर डोमेन में परफॉर्मेंस बुरा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर सिंगिंग को लेके एस फैक्टर हाई है तो सिर्फ सिंगिंग अच्छी होगी, ठीक है। सो दिस इज द टू फैक्टर मॉडल, टू फैक्टर थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय चार्ल्स बर्मन। व्हाट डिड ही से? ही सेड कि इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स या टू सेट ऑफ फैक्टर्स। फर्स्ट इज द जनरल फैक्टर जिसके अंदर मेंटल ऑपरेशंस आते हैं, दे आर प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंसेस। एंड सेकंड जो है हमारा वो है स्पेसिफिक फैक्टर, और वो स्पेसिफिक एबिलिटीज को कैरी करता है, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी प्रिमिटिव। नेक्स्ट हमारा थर्ड थियरी आई लुई थर्स्टन की। नाउ लुई थर्स्टन वाज अ पर्सन, ही कैटेगराइज डिफरेंट एबिलिटीज, और उसने बोला कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 7 प्राइमरी एबिलिटीज। प्राइमरी क्यों बोला उसने? बिकॉज दीज आर द वेरी बेसिक्स, तुम्हें हर काम करने में इन चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। इंडिपेंडेंट मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, अब इसका मतलब हम अभी आगे देखेंगे। बट 7 मेंटल एबिलिटीज कौन कौन सी है? फर्स्ट इज वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन मतलब जो तुम्हारे आसपास वर्ड्स यूज हो रहे हैं, आइडियाज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, उसका तुम मीनिंग समझ पाओ, तो दैट इज वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। सेकंड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब नंबर को तुम कितनी अच्छी तरह मैनिपुलेट कर पाते हो, और कंप्यूटेशन स्किल्स कितनी अच्छी है तुम्हारी, चीज़ों को ऐड करना, डिवाइड करना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस तुम कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। अब जरूरी नहीं है तुम ये बोलोगे कि हमने तो आर्ट्स लिया, या जो आर्ट्स वाले हैं वो ये बोलेंगे हमने तो आर्ट्स लिया, तो हमारे अंदर तो मेडिकल एबिलिटी होगी नहीं। भाई तुम दुकान जाते हो, तुम मार्केट जाते हो, तुम बिल्स पे करते हो, तुम सामान खरीदते हो, तो वहाँ पे भी तो तुम नंबर का हिसाब लगा ही रहे हो ना। तुम कुछ नहीं करते, तुम पार्टी कर रहे हो, तुम्हें हर किसी से अपनी कॉन्ट्री चाहिए, तो वहाँ पे भी तो तुम्हें नंबर का हिसाब लगा रहे हो। सो हमारी डे टू डे लाइफ में भी ना नंबर हमें, न्यूमेरिकल एबिलिटीज हमारी यूज होती है, बेसिक लेवल पे होती है बट होती है, ठीक है। सो दैट सेवन। सेकंड, थर्ड इज स्पेशल रिलेशन। स्पेशल रिलेशन मतलब विजुअल पैटर्न्स को ऑर्गेनाइज कर पाना अपने दिमाग में। परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड मतलब जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, उसको तुम कितनी जल्दी उसकी डिटेल्स को परसीव कर लेते हो, कितनी जल्दी उसको प्रोसेस कर पाते हो। वर्ड फ्लुएंसी, लैंग्वेज को, वर्ड को फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली यूज करना। पोएट्स में बहुत ज़्यादा होता है ये, क्योंकि तुम छोटी सी बात बोलोगे कि मैं सैड हूँ, और वो उसी बात को इतना घुमा फिरा के इतना बेहतरीन तरीके से बोल देंगे, तो तुम्हें लगेगा मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ये। वाई? बिकॉज उनके अंदर वर्ड फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा है, वो उस लैंग्वेज को बहुत फ्लेक्सिबली फ्लुएंटली यूज कर पाते हैं। मेमोरी मतलब तुम कितनी देर तक कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को याद करके रख सकते हो। एंड इंडक्टिव रीजनिंग मतलब रीजनिंग, इट इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग। सो दीज आर द 7 एबिलिटीज जो सबके अंदर होती है, बट इनकी इंटेंसिटी अलग होती है ना। जरूरी तो नहीं है जितना वर्बल कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा है मेरा भी उतना ही है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर मेरा वर्बल कॉम्प्रिहेंशन हाई है तो ये सारे ही हाई होंगे, या वर्बल कॉम्प्रिहेंशन हाई हो गया तो ये सारे लो होंगे, नहीं। सो दैट इज व्हाट ही मेंट बाय इंडिपेंडेंट, कि ये सारी जो एबिलिटीज होती हैं, दीज 7 एबिलिटीज, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन किसी में हाई है तो ये भी हाई हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये भी हाई हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स। तो दीज आर द 7 एबिलिटीज, अगेन वेरी सिंपल, वेरी प्रिमिटिव। इसमें तुम्हें याद क्या रखना है? सो इसमें तुम्हें याद रखना है कि इट वाज गिवन बाय लुई थर्स्टन। 7 एबिलिटीज है इसके अंदर, एंड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए, एंड ऑब्वियसली इनके नेम तो तुम्हें याद रखने ही है। सो दैट्स इट। नाउ कम्स द फोर्थ मॉडल व्हिच वाज हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, एंड ये आर्थर जेंसन ने दिया था। आर्थर जेंसन ने बोला कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है ना, इट ऑपरेट्स ऑन 2 डिफरेंट लेवल्स। फर्स्ट लेवल जो होता है वो ऑब्वियसली नीचे आता है, बेस लेवल होता है, एंड सेकंड लेवल उसके ऊपर आता है, ठीक है। एंड फर्स्ट लेवल पे क्या होती है? एसोसिएटिव लर्निंग, मतलब किसी भी चीज़ को एज इट इज याद कर लेना, लर्न कर लेना, जिसको हम रूट लर्निंग भी बोलते हैं, रट्टा मारना। अब सपोज मैंने तुम्हें चैप्टर बोला कि योर होमवर्क इज टू लर्न चैप्टर 1, तुम घर गए, तुमने एनसीईआरटी को रट लिया, पूरा नोट्स को अपने रट लिया, एक एक वर्ड आके मुझे अगले दिन सुना दिया तुमने। अब मैंने पूछा ठीक है भाई, वेरी गुड, तुमने रट लिया। अब तुमसे मैंने पूछा हायरार्कियल मॉडल का मतलब क्या है? तुमने बोला कि वो तो आर्थर जेंसन ने दिया था, उसमें ऐसे ऐसे। मैंने कहा वेरी गुड। अब मैंने बस तुमसे पूछा हायरार्की वर्ड का मतलब क्या है, तुम्हें नहीं पता। अब तुम्हें क्यों नहीं पता? क्योंकि बुक के अंदर वो चीज़ लिखी नहीं थी। तुमने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली, जो तुम्हें डेटा मिला, तुमने उसको एज इट इज याद कर लिया। तो जब हम सिर्फ चीज़ों को लर्न कर लेते हैं ना, तो मतलब हमारा दिमाग उसको फर्स्ट लेवल पे प्रोसेस कर रहा है। तो फर्स्ट लेवल पे अगर कोई चीज़ प्रोसेस हो रही है, तो इनपुट जो दिया तुमने, जो डेटा तुमने दिया, वो सेम होगा एज आउटपुट। तो यहाँ पे इनपुट इज सेम एज आउटपुट, और शॉर्ट टर्म में जाएगा ये, उतने ज़्यादा टाइम तक तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा। अब इसके बाद आता है लेवल 2। लेवल 2 में हम क्या करते हैं, उसको कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को यूज़ करके इसको समझते हैं, मतलब सोचते हैं चीज़ों को। अब तुम्हें मैंने सेम चीज़ दी कि चैप्टर को जाके पढ़, घर पे याद करके आओ कल। तुमने क्या किया, एक एक थ्योरी को अच्छे से पढ़ा, उसका मीनिंग ढूंढा, उसके खुद के एग्जाम्पल्स बनाए, तो तुमने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, है ना। तुमने इन्फॉर्मेशन, मैंने कुछ और दी थी तुम्हें, इनपुट कुछ और था, और तुमने उसको थोड़ा बहुत चेंज करके आउटपुट कुछ और निकाला है उससे। तो वो हो गया हमारा लेवल 2 इंटेलिजेंस की। वो लॉन्ग टर्म में जाएगी, वो डीप लेवल पे प्रोसेस हो रही है, और यहाँ पे इनपुट जो है वो आउटपुट से अलग है। सो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर हम चीज़ों को सेकंड लेवल पे प्रोसेस करते हैं तो इट इज़ मोर इफेक्टिव, एंड दिस इज व्हाट हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस सेज, कि इंटेलिजेंस 2 लेवल पे ऑपरेट करती है। फर्स्ट लेवल इज डायरेक्ट लर्निंग, और सेकंड लेवल इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। अब इस पे पास्ट ईयर पेपर भी आया हुआ था। गो टू द सीबीएसई वेबसाइट, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ज्वाइन द कम्युनिटी, उसमें मैंने सारे 5 साल के पेपर भेजे हुए हैं, ठीक है। पिछले साल के पेपर में, 2025 वाले पेपर में देखना, एक फर्स्ट क्वेश्चन मैचिंग है, एक एमसीक्यू में, वो इसी पर बेस्ड है।
गो एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन। अगर तुमसे हो रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं हो रहा है तो एक बार ये दोबारा से रीड करो और देखो तुम्हें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बस एक चीज़ ट्रिक की हुई है। नाउ कमिंग टू द, और अगर तुमसे वो क्वेश्चन हो जाए तो मुझे बताना कि हो गया हमसे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। दिस इज द लास्ट मॉडल ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच। फिफ्थ थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, हम 4 थ्योरी करके आ चुके हैं। नाउ दिस मॉडल वाज गिवन बाय जेपी गिलफर्ड। जेपी गिलफर्ड ने क्या बोला कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स होते हैं ना, उसके 3 डायमेंशंस होते हैं। अब 3 डायमेंशंस क्या है? ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट की अपनी अपनी डेफिनेशन है। बिफोर दैट, अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर तुम इस स्लाइड पे जितनी चीज़ें लिखी हुई है ना सब लिख के आ जाओगे तो 4 के 4 मार्क्स तुम्हें पूरे के पूरे मिल जाएंगे। उससे ज़्यादा नहीं आएगा भी नहीं। 3 में आएगा, 4 में भी मुश्किल ही है। 3 में आएगा, 4 में तब आएगा जब इसका एक और पार्ट होगा, तो तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। समझो अब क्या क्या लिखना है। जेपी गिलफर्ड ने बोला कि इंटेलेक्ट जो है, इंटेलिजेंस जो है हमारी, उसके 3 डायमेंशन होते हैं। ऑपरेशन फर्स्ट डायमेंशन, कंटेंट सेकंड डायमेंशन एंड प्रोडक्ट थर्ड डायमेंशन। एंड दैट्स वाई उसको हम क्यूब से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके 3 फेसेस है ना। ये फर्स्ट फेस हो गया, ठीक है। देन 1 सेकेंड, ये सेकेंड फेस हो गया, एंड हमारा ये वाला जो है ये थर्ड फेस हो गया। सॉरी, ऑपरेशन क्या होता है? इट इज़ व्हाट द रिस्पोंडेंट डस। रिस्पोंडेंट मतलब जिसकी तुम इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हो ना, वो मेंटली क्या कर रहा है। तो अगर तुम देखो तो मेंटली तुम कौन कौन से टास्क करते हो? मेंटली तुम सोचते हो, राइट? तो सोचने को ही तो हम कॉग्निशन बोलते हैं। ये 3 डायमेंशंस हो गए। देखो ऑपरेशन मतलब रिस्पोंडेंट क्या कर रहा है? रिस्पोंडेंट जिसका तुम इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हो, तो फर्स्ट वो कॉग्निशन करता है, मतलब सोचता है, ठीक है। इंटेलिजेंट इंसान सोचता है, तुम भले ना सोचते हो। दूसरा है मेमोरी रिकॉर्डिंग। मेमोरी रिकॉर्डिंग मतलब जो भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल रही है, जो भी आसपास से तुम्हें स्टिमुलसेस मिल रहे हैं, तुम उसको अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, रजिस्टर कर रहे हो, तो दैट इज रिकॉर्डिंग। जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान, उतनी ज़्यादा उसकी रजिस्टरिंग और रिकॉर्डिंग पावर होती है। थर्ड इज कि तुमने उसको रजिस्टर तो कर लिया, अब जब ज़रूरत पड़े तो उसको रिटेन भी तो करो, उसको रिकॉल भी तो करो। अगेन, जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस उतनी ज़्यादा रिटेंशन पावर। फोर्थ इज डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मतलब एक चीज़ के लिए तुम बहुत सारे सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। एंड लास्ट इवैल्यूएशन, चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हो। सो दीज आर द मेंटल ऑपरेशंस जो एक इंसान परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन इनको करने के लिए कोई डेटा चाहिए। अगर कॉग्निशन करना है, तुम्हें सोचना है, तो किस बारे में सोचोगे? किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचोगे। मेमोरी को रिकॉर्ड करना है तो किस चीज़ को रिकॉर्ड करोगे? कोई इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करोगे। अब वो इन्फॉर्मेशन, वो कंटेंट हमें अलग अलग फॉर्म में मिलता है, एंड दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें आसपास से मिल रहा है। अब वो या तो विजुअल हो सकता है जो तुम अपनी आंखों से देखोगे, ऑडिटरी हो सकता है जो तुम अपने कानों से सुनोगे, ठीक है। सीमेंटिक हो सकता है, सीमेंटिक मतलब वर्ड्स के फॉर्म में। सिंबॉलिक हो सकता है, मतलब लेटर्स और पिक्चर्स के फॉर्म में। एंड बिहेवियरल हो सकता है, जो तुम्हारे आसपास लोग कर रहे हैं, लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर, वो हो सकता है, ठीक है। अब तुमने ये इस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को लिया और सोचा उसके बारे में, उसको रिकॉर्ड किया। उससे तुम क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको तुम कैसे प्रोसेस कर रहे हो, वो आता है प्रोडक्ट में। अब तुम हर जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको इंडिविजुअली प्रोसेस करोगे अगर, तो वो यूनिट हो गया। अगर उसको क्लासेस में प्रोसेस करोगे, मतलब सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे उसको ग्रुप कर लिया और फिर प्रोसेस कर रहे हो, तो वो क्लासेस हो गया। रिलेशन मतलब उनके बीच के डिफरेंसेस वगैरह ढूंढ रहे हो, आपस में रिलेशन निकाल रहे हो, तुम्हारे दिमाग में जो पहले की इन्फॉर्मेशन है उससे उसको रिलेट कर रहे हो, तो ये हो गया। देन सिस्टम्स भी आता है इसी में कि हम अपने दिमाग में कैटेगरीज बनाते हैं ना कि फ्रूट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, वैसे तो वैसे तुमने अपना कोई सिस्टम बना लिया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली कुछ और थी, इनपुट कुछ और मिला था, तुमने उसका आउटपुट कुछ और बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें ये थ्योरी पढ़ाई और तुम इसका अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के आ गए। और इम्प्लीकेशन मतलब रियल लाइफ में उसको कैसे तुम अप्लाई करोगे। सो इस बेसिस पे हम उसको प्रोसेस करते हैं। अब इसका मैं बहुत सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल बता रही हूँ। तुम अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हो, राइट? तो तुम चैप्टर पढ़ते टाइम क्या क्या कर रहे हो बताओ? कॉग्निशन कर रहे हो, राइट? तो कॉग्निशन तुम्हारा अभी हो रहा है ना। रिकॉर्ड भी कर रहे हो मेमोरी को, और रिटेन भी तो कर रहे हो, जो पुराना पढ़ा होगा वो तुम्हें याद आ रहा होगा। तो तुम ये तीनों चीजें कर रहे हो। तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल किस फॉर्म में रही है? यहाँ पे तुम ये स्लाइड देख रहे हो, ये विजुअल है, मैं बोल रही हूँ ये ऑडिटरी है, वर्ड्स लिखे हुए हैं इस पे, एंड सिंबल्स के फॉर्म में कुछ ना कुछ बना हुआ है। एंड तुम इनको प्रोसेस कर रहे हो कैसे? सब अलग अलग तरीके से कर रहे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जिसने ये पूरी थियरी को एक थ्योरी मान के, एक थ्योरी इंडिविजुअली और पढ़ लिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया? इनमें से कौन सा होगा? क्लास की इंटेलिजेंस की थ्योरी थी, पढ़ लिया। कुछ बच्चे क्या करेंगे? सबका अलग अलग मतलब निकालेंगे, सबको वर्ड को अलग अलग समझेंगे, तो उन्होंने सब इन्फॉर्मेशन को इंडिविजुअली यूनिट्स में प्रोसेस किया है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपनी रियल लाइफ में इसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि जब मैं विजुअल इन्फॉर्मेशन लेता हूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है, जब मैं ऑडिटरी लेता हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से सोच पाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे तुमने सोचने की कोशिश करी, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीकेशन हो गया। सो प्रोसेसिंग सबकी अलग अलग होती है, एंड जितनी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कंटेंट को तुम अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर पा रहे हो, उतना ज़्यादा तुम्हारा हाई आईक्यू है। सो ये बता क्या रहा है कि हाउ डज आवर ब्रेन फंक्शंस। अब ये देखो यहाँ पे ना कितने ऑपरेशंस है? 6 ऑपरेशंस है। कितने कंटेंट है? 5 कंटेंट है। और कितने प्रोडक्ट है? 6 प्रोडक्ट है। तो जेपी गिलफर्ड ने बोला कि इंटेलिजेंस जो होती है 6 इंटू 5 इंटू 6, इसके 180 डिफरेंट सेल्स होते हैं, और इसको इस क्यूब से उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। सो इफ यू राइट दिस एंटायर थिंग इन योर आंसर, तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बस एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखना। नाउ नेक्स्ट थियरी, आई होप ये समझ आ गया हो, क्योंकि लोगों को ये याद तो हो जाता है, समझ में नहीं आता है ना। और तुम अपनी एनसीईआरटी की बुक में अगर देखोगे ना,
यहाँ पे इसको कैटेगराइज करके लिखने का मेरा यही मोटो था कि तुम्हें चीज़ें अलग अलग विजुअलाइज हो पाए, सो दैट तुम उसको समझ पाओ। क्योंकि बुक के अंदर ना ऑपरेशन लिखा है और फिर ऐसी ये 5 और 6 चीज़ें ब्रैकेट में लिखी हुई है, तो बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। दिस इज नॉट टू बी इग्नोर्ड, ये भी याद होना चाहिए तुम्हें। यहाँ से हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच शुरू होता है, एंड दिस इज द सिक्स्थ थियरी दैट वी आर स्टडीइंग, multiple intelligence theory by Howard Gardner. Howard Gardner was the first psychologist who believed कि intelligence एक single entity नहीं है, इंस्टेंट डिफरेंट तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, एंड वो सारे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। एंड एक इंसान एक से ज़्यादा तरह की इंटेलिजेंस शो कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके अंदर 5 डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस है तो एक ज़्यादा और बाकी कम होगी, या एक कम सारी ही कम होगी। वो इट डज नॉट, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कितनी डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस उसने बताई, 8 डिफरेंट टाइप्स। and these are the types. First है linguistic intelligence. Linguistic मतलब related to language. तो linguistic intelligence is the ability of a person to learn, understand and use language, both written and spoken. कोई भी language, ज़रूरी नहीं है कि, और ऐसा भी नहीं है कि उसके अंदर अगर linguistic intelligence है मतलब वो जल्दी जल्दी सारी languages याद कर लेगा, उसको 10-12 तरीके की language आएगी। नो, अगर he is a Hindi speaking person या he is an English speaking person, तो उसका उस language में कमांड इतना ज़्यादा होगा, कमांड इतना अच्छा होगा कि वो उस language को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर पाएगा, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है, एंड जिनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है, तुम उनको कौन से फील्ड में देखोगे? दोस काइंड ऑफ पीपल आर वेरी गुड राइटर, वेरी गुड पोएट्स, दे आर वेरी गुड डिप्लोमेट्स, ऑथर्स। ठीक है, सो दैट्स वाई अभी मैंने बताया था ना कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो सारे किस में यूज़ होते हैं, करियर गाइडेंस में यूज़ होते हैं। करियर गाइडेंस में उसकी इंटेलिजेंस, उसकी ट्रेड्स को देख के हम बता सकते हैं कि आप कौन सी फील्ड में अच्छे से सक्सीड करोगे। सो लिंग्विस्टिक वाले इन फील्ड में सक्सीड करते हैं। इसमें और भी आ जाएंगे, डिप्लोमेट वगैरह भी आ जाएंगे। सेकंड इज लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग। लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब उसकी कंप्यूटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, उसका लॉजिक बहुत अच्छा है, वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज कर पाता है, प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व कर पाता है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज़ कर पाता है। नाउ दीज पीपल हु हैव लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग, वो अच्छे साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर होंगे, अकाउंटेंट्स होंगे, सीए होंगे, रिसर्चर्स होंगे। ठीक है, थर्ड इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल मतलब म्यूजिक से रिलेटेड रिदम्स, राइट। सो द थर्ड वाज व्हाट, द थर्ड वाज द म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में उनको म्यूजिक की, सुर ताल की, रिदम की अच्छी समझ होती है, एंड जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस हाई होती है, दे कुड बी म्यूजिशियन, दे कुड बी डांसर। सॉन्ग राइटर नहीं आएगा यहाँ पे। सॉन्ग राइटिंग में क्या चाहिए होता है, हमें सॉन्ग राइटिंग में यू शुड बी एबल टू यूज द वर्ड्स इन अ वेरी पोएटिक और मेटाफोरिकल मैनर, तो वो यहाँ पे आ जाएगा लिंग्विस्टिक में। जो गाने लिखते हैं, जो लिरिसिस्ट होते हैं, वो उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है। यहाँ पे आ जाएगा कंपोजर्स, सो दोज हु कंपोज म्यूजिक, मतलब जो म्यूजिक की धुन बनाते हैं, उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस हाई होती है, राइट। नाउ द फोर्थ टाइप इज बॉडीली काइनेस्थेटिक। सो बॉडीली काइनेस्थेटिक वो लोगों के अंदर होती है इंटेलिजेंस जो अपने बॉडी पार्ट्स को स्किलफुली यूज करके अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड उनके अंदर एबिलिटीज क्या क्या होगी, दे हैव एक्सीलेंट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स और बॉडी मूवमेंट्स। उसके बाद उनकी फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रिसाइज होती है, हैंड्स को, फिंगर्स को बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। सो इफ यू हैव सीन अ डांसर, इफ यू हैव सीन अ क्लासिकल डांसर, तो देखना उसकी एक एक उंगली की मूवमेंट, एक एक बॉडी पार्ट की मूवमेंट कितनी प्रिसाइज होती है, कितनी एलिगेंट होती है। सो दैट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक। टाइमिंग, बैलेंस, रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होंगे उनके। ठीक है, तो अपनी बॉडी को यूज करके वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, उनके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक अच्छा है। अब जिनके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हाई है, वो क्या क्या सूटेबल करियर हो सकते हैं उनके अंदर, वो एथलीट बन सकता है, डांसर बन सकता है, मैकेनिक बन सकता है, क्राफ्ट पर्सन बन सकता है। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ दीज रिक्वायर्ड फाइन मोटर स्किल्स, परफेक्ट फाइन मोटर स्किल्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ओवर योर बॉडी। नाउ फिफ्थ इज द स्पेशियल इंटेलिजेंस। लाइक स्पेशियल इंटेलिजेंस मतलब तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो चीज़ों को इन द एब्सेंस ऑफ दोज थिंग्स, मतलब अपने दिमाग में उसकी इमेज बना के सोच पा रहे हो और वो चीज़ होने सामने तुम्हारे होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मैप समझने के लिए, चार्ट समझने के लिए, डायग्राम समझने के लिए तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे होना पड़े, तुम 2D में देख के भी समझ लोगे, 3D में अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर लोगे। नाउ दोज पीपल हु आर हाई ऑन स्पेशल इंटेलिजेंस, वो नेविगेटर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं और स्कल्पचर्स बन सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड स्पेस। चीज़ों को वो अपने माइंड में ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पेशियल। नाउ सिक्स्थ इज इंटरपर्सनल। इंटर मतलब बिटवीन टू पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोग होने चाहिए, बिटवीन टू पीपल। एंड दोज हु आर हाई ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स, वो खुद दूसरों के इमोशंस, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इंटेंशन, उनके थॉट्स, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उनके अराउंड बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। अब अगर तुम दूसरों की इंटेंशंस, इमोशंस, फीलिंग्स समझ पा रहे हो, तो तुम्हारे लिए सूटेबल करियर क्या होगा? पॉलिटिशियन बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, सोशल वर्कर बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल सूटेबल करियर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। नाउ द सेवेंथ इज इंट्रापर्सनल। इंट्रा मतलब विद इन, मतलब खुद के
फीलिंग्स, खुद के इमोशंस, खुद की अंडरस्टैंडिंग को अगर समझ पा रहे हो, खुद की बातों को, खुद के बिहेवियर को अगर एनालाइज़ कर पा रहे हो, खुद के थॉट्स को अगर एनालाइज़ कर पा रहे हो बहुत अच्छे से, तुम्हें हमेशा पता चल जाता है कि तुम्हारा माइंड क्या सोच रहा है, किस मोमेंट पे कैसे फ़ील कर रहे हो, तो यू हैव गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और ये जनरली, ये तो चलो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, दिस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस इज़ रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड या ऑल द करियर ऑप्शंस, तो ये तो क्रिटिकल है फॉर ह्यूमन्स ओनली। नाउ 8th इज़ naturalistic. Naturalistic is the ability to recognize and classify different types of flora and fauna, plants and animals. जिनके अंदर naturalistic intelligence हाई होती है, वो नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, नेचर के बारे में सोचते हैं, उसको बचाने के बारे में सोचते हैं, एंड फॉर सूटेबल करियर ऑप्शंस ये ऑप्शंस हो गए naturalistic, botanist, etc., farmers, etc. So this was Howard Gardner's intelligence model, and Howard Gardner was इसमें की पॉइंट क्या है, तीन चीज़ें तुम्हें याद रखनी है कि Howard Gardner was the first person who said intelligence is not a single entity, instead they are of different types. मतलब इंटेलिजेंस जो होती है वो एक चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक कोई कंपोनेंट है जो तुम्हारे दिमाग में है, बल्कि इंटेलिजेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंड सबके अंदर अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है। नाउ दैट बीइंग सेड, ही आल्सो सेड, सेकंड पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर, ही आल्सो सेड कि ये जो 8 डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी के अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग हाई है तो बाकी सारी भी हाई होगी, ऐसा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि अगर एक इंटेलिजेंस हाई है तो उसके अंदर बाकी नहीं हो सकती। कोई भी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर सकता है, इंटरपर्सनल हाई, सोशल हाई, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। बट इसको इतना डिटेल में मत लेके जाओ, जस्ट रिमेंबर दिस कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू से दैट इट इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी, एंड ही सेड दैट 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एक्सिस्ट एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, राइट। सो दिस वाज वन ऑफ द information processing approach to intelligence. Now the seventh theory that we are going to read is triarchic theory of intelligence. Triarchic theory, now tri means three, okay. So this particular theory highlights three different types of intelligence and it was given by Robert Sternberg. Now if you remember the first slide जिसमें हमने intelligence के बारे में पढ़ा था, तो that slide very well showed कि different लोगों ने intelligence की क्या क्या definitions दिए थे। उसमें हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की definition देखी थी, एल्फ्रेड बिनेट की definition देखी थी, वेशलर की देखी थी, एंड गार्डनर एंड रॉबर्ट स्टेनबर्ग was also mentioned in it. And Robert Sternberg ने क्या ऐड किया था कि an intelligent person is a person who can adapt to their environment as well as modify their environment according to their needs. तो according to Robert Sternberg, intelligence क्या है? It is the ability to adapt to shape and select environment to accomplish your goals एंड दोज ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। मतलब तुम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए खुद को अडेप्ट करो, एनवायरमेंट को अडेप्ट करो और उस गोल को अचीव करो। इफ यू आर एबल टू डू दैट देन यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। एंड ही प्रपोज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट इज द कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। अब कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। सेम चीज़ के दो डिफरेंट नेम्स हैं, बोथ आर सेम। अब इसमें होता क्या है, अगर किसी के अंदर कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हाई है तो दे शुड बी एबल टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। उनके सामने तुम कोई भी स्टिमुलस रख दो, कोई भी इन्फॉर्मेशन रख दो और कोई भी प्रॉब्लम रख दो, उनके आसपास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना उसको एनालाइज करके उसको समझ के वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस उनकी हाई है। नाउ दिस डजंट ओनली अप्लाई टू एकेडमिक प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि तुमने उनके सामने मैथ्स की प्रॉब्लम रख ली तो वो सिर्फ वही सॉल्व कर पाएंगे, या कोई क्वेश्चन पेपर रख दिया वो सिर्फ वही सॉल्व कर पाएंगे। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑल्सो, उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही है, जो भी टास्क उनको ओवरकम करना है, अचीव करना है, सो उन सबको भी उनके आसपास जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको यूज़ करके वो सॉल्व कर पाएंगे। अब ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हाई होती है, नेचुरली दे डू गुड इन स्कूल, मतलब स्कूल में वो सक्सीड करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब इसके ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ये 3 स्टेप्स में होता है कह लो, या 3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है मेंटली। फर्स्ट इज एक्विजिशन मतलब सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एक्विजिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और एक्विजिशन ऑफ डेटा। तो तुमने यहाँ पे तुम्हारे आसपास जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको कलेक्ट किया है, गैदर किया है। नेक्स्ट इज मेटा कॉग्निशन और हायर ऑर्डर कंपोनेंट। यहाँ पे जो भी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है तुम उसके बारे में सोच रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो। नाउ मेटा कॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट योर ओन थॉट्स और थिंकिंग अबाउट द मटेरियल दैट यू हैव इन माइंड। तो मेटा कॉग्निशन मतलब इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया उसके बारे में सोचना। एंड देन वंस यू हैव एनालाइज दैट इन्फॉर्मेशन तो उसको यूज करके तुम परफॉर्म करो, मतलब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स और 3 स्टेप्स ऑफ कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। नाउ द सेकंड टाइप इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब इसको क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दोज हु आर हाई ऑन एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करके न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। नोबल प्रॉब्लम्स मतलब न्यू प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने पास्ट में जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करी होगी, पास्ट में जो भी फेस किया होगा, वो सबको सबको यूज़ किया हुआ है, मतलब उन्होंने अपने दिमाग में स्टोर करके रखा हुआ है। एंड जब जब उनके साथ कुछ नया हो रहा है, एवरीडे लाइफ में कुछ भी हो रहा है, तो वो उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, उस एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो कर क्या रहे हैं ये, अपने जितने भी एक्सपीरियंस है उसको ओरिजिनल वे में नए तरीके से सोच के न्यू न्यू डिस्कवरीज कर रहे हैं कि मेरे साथ कभी एक बार कुछ हुआ था, अभी कुछ और हुआ है, तो मैंने सोचा अच्छा उससे मैंने ये सीखा था, उसको मैं इसमें यूज़ कर लूँ, राइट। सो दैट इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
A good example of this would be, suppose there is a person and he loves cooking, right? So he likes to experiment with all the ingredients that he have in his fridge or at his house. So उसने क्या किया, उसको सारे ingredients का taste पता है, उसको सारे ingredients का combination पता है. Now using those flavors, using those ingredients, उसने कुछ नया tasty बना दिया which is suitable for the guest that he is expecting tonight. और वो एक particular community का है, तो उनको पता है कि वो इसका इस तरह का खाना खाते हैं, तो उसने अपने फ्रिज में से जितने भी ingredients है उसको combine करके एक नया डिश बना दिया जो उनके लिए अच्छा है. सो उसने अपने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस नॉलेज को यूज करके क्रिएटिव वे में एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और ये प्रॉब्लम न्यू थी, है ना. सो दैट्स हाउ इन एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड, राइट. नाउ द थर्ड टाइप इज कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. अब इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में ये यूज होता है, और इसके और भी नेम्स हैं, बट लेट्स सी पॉइंट बाय पॉइंट. तो कंटेक्चुअल हमारा थर्ड टाइप हो गया. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. ये हमें डेली डे टू डे एनवायरमेंट से की डिमांड से डील करने में हेल्प करता है. नाउ इसका दूसरा नाम स्ट्रीट स्मार्टनेस या बिजनेस सेंस भी है. अब पीपल हु आर हाई ऑन दिस, वो इजिली अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाते हैं, एंड ऑल्सो इफ नीडेड वो एनवायरमेंट को भी चेंज कर पाते हैं अपने अकॉर्डिंग. सो एग्जाम्पल समझो इसका, कि इमेजिन देर इज अ टीनेजर और वो हर रोज पार्क में जाता है जॉगिंग करने के लिए, एंड सडनली उसने नोटिस किया कि एक टाइम पे पार्क बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाता है, तो वो मॉर्निंग की जगह इवनिंग में जाने लगा. वुड बी कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. क्यों? क्योंकि उसने अपनी दिमाग, उसने देखा कि आसपास के लोग कैसे एक्ट कर रहे हैं, एंड टू फुलफिल हिज नीड्स उसने अपने बिहेवियर को अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, अडेप्ट कर लिया. सो दैट इज कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, बट द बेसिक आइडिया इज दैट कि तुम्हें तीनों का डिफरेंस समझ आना चाहिए. कॉम्पोनेंशियल में क्या है, यू आर एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन. एक्सपीरियंशियल में क्या है, यू आर यूजिंग योर पास्ट एक्सपीरियंस टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स. एंड कंटेक्चुअल में क्या है, यू आर एबल टू अडेप्ट योर सेल्फ टू एनवायरमेंट, मतलब टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स. जो भी तुम्हारे आसपास हो रहा है उससे डील करने के लिए तुम खुद के बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो. तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टेनबर्ग. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थियरी, या जो भी थियरी अभी तक हमने की है, जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आंसर देम. नाउ कम्स द लास्ट थियरी ऑफ दिस चैप्टर, eighth theory, which is the pass model. Now pass model was given by JP Das, Nigleri and Kirpai, and according to this model जो हमारी intellectual abilities होती हैं उसमें तीन डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इंटरडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और फंक्शन करते हैं. एंड ये तीन फंक्शंस क्या है? अराउजल, अटेंशन, कोडिंग और प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड प्लानिंग. नाउ द फर्स्ट स्टेज इज अराउजल और अटेंशन. सो whenever a stimulus इज देयर इन आर सराउंडिंग्स जो मुझे इम्पैक्ट करेगा, तो वो स्टिमुलस क्या करता है, मेरे नर्वस सिस्टम को अराउज करता है, मतलब इट लीड्स टू सिक्रीशन ऑफ सम न्यूरोट्रांसमीटर और समथिंग. बेसिकली वो मेरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, अराउज करेगा. वंस माई नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड तो मैं उसको अटेंड करूंगी. अब जब मैंने उसको अटेंड किया, उस पर ध्यान देना शुरू किया, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे उससे मिल रही है वो मेरे नॉलेज सिस्टम में या तो साइमल्टेनियसली प्रोसेस होगी या सक्सेसिवली प्रोसेस होगी. ठीक है. साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग क्या होती है? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का मतलब तुम चीज़ों को अपने दिमाग में एज अ होल, मतलब एक दूसरे वेरियस कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके, इंटीग्रेट करके एज अ मीनिंगफुल होल उसको अपने दिमाग में इंटीग्रेट कर रहे हो, उसको अपने नॉलेज सिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हो. और सक्सेसिंग क्या होता है? जब तुम्हें इन्फॉर्मेशन एक सीरियल ऑर्डर में याद होती है. ठीक है. दो तरीके से हम चीज़ों को अपने दिमाग में याद करते हैं, या तो हम सीरियल ऑर्डर में करते हैं, या तो उसको कंप्रीहेंड करके उसका मीनिंग समझ के एज अ होल करते हैं. अब बोथ द प्रोसेसिंग आर इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि एक सुपीरियर है एक इन्फीरियर है. कुछ डेटा सेट के लिए साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग अच्छी होती है, कुछ के लिए सक्सेसिव प्रोसेसिंग अच्छी होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब तुमने 10th में रिएक्टिविटी सीरीज याद करी थी, तो उस टाइम पे सक्सेसिव प्रोसेसिंग ही तो करी थी ना, या तुमने एलिमेंट्स के नेम्स याद करे थे, तो क्या किया था? सक्सेसिव प्रोसेसिंग करी थी. ऐसे एक निमोनिक बनाया होगा, ह हेली बेब, तो वो सक्सेसिव हो गया. जब हम अल्फाबेट्स याद करते हैं एबीसीडी, तो सक्सेसिव होता है, बिकॉज रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू रिकॉल ऑफ अदर. लेकिन जब हम यहाँ पे ये थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसको तुम मतलब समझ के मीनिंगफुली अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहे हो, या फिर उसको रिकॉर्ड कर रहे हो. सो डिफरेंट डेटा सेट्स रिक्वायर डिफरेंट प्रोसेसिंग. नाउ वंस यू हैव इंटीग्रेटेड द स्टिमुलस इनटू योर नॉलेज सिस्टम, तो उसके बाद क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग में हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग हुई है, कितना इन्फॉर्मेशन तुम्हें याद है, और कितना इन्फॉर्मेशन अभी और याद करना बचा है टू रीच द टारगेट. वंस यू डू द प्लानिंग, वंस यू इवैल्यूएट ऑल दिस, तो तुम वापस से दोबारा इसको रिपीट करते हो. तो सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज तुम्हारा जो है अभी बोर्ड्स आ रहे हैं, राइट. सो ये बोर्ड जितनी जल्दी जितना पास आते जा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता जा रहा है, अराउज होता जा रहा है. जितना नर्वस सिस्टम अराउज होगा, तुम उतना ज़्यादा सिलेबस पूरा करने पे अटेंशन डालोगे. नाउ वंस यू हैव स्टार्टेड रिवाइजिंग योर सिलेबस या स्टडीइंग योर कोर्स बुक्स, तो तुम जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आ रही है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो तुम्हें समझनी पड़ेगी, तो उसको तुम साइमल्टेनियसली प्रोसेस करोगे. कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो सीरीज में होगी, तो एक के बाद उसको एक को याद करना पड़ेगा. जैसे हिस्ट्री में डेट्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं,
एक के बाद एक उसको याद करना पड़ेगा सीरियल ऑर्डर में, तो वो सक्सेसिवली प्रोसेस होगी। नाउ वंस यू हैव कंप्लीटेड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो तुम क्या करोगे, उसको इवैल्यूएट करोगे, और इवैल्यूएट में तुम कोई टेस्ट लोगे या कोई वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे, कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि कितना तुम्हारा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है और कितना बचा है। वंस यू हैव इवैल्यूएटेड दैट, अपने जो भी तुम्हारा ये प्लान साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेसिंग थी उसकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट कर लिया, तो तुम वापस से प्लान करोगे कि अब इसको दोबारा करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और कितना अभी बचा है अचीव करना। सो दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन इनटू आवर नॉलेज सिस्टम। सो दिस वाज द पास मॉडल। ये इसका डायग्राम भी है कि पहले हम अटेंड करते हैं जब हमारा नर्वस सिस्टम अराउज होता है, फिर इसको हम एक्वायर करते हैं और होल्ड करते हैं, फिर हम प्लानिंग करते हैं, राइट। नाउ इसी मॉडल पर बेस्ड है एक टेस्ट, और इस टेस्ट को हम बोलते हैं CAS, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। ठीक है, ये दास एंड नेग्लेरी ने ही दिया था। ये बैटरी ऑफ टेस्ट है। अब मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू हैव वॉच माई वीडियोज़ बिफोर, तो टेस्ट क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट टेस्ट होता है, राइट, जिसके अंदर एक ही चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल सपोज स्ट्रेस के लिए टेस्ट बना है, तो वो सिर्फ स्ट्रेस मेजर करेगा और उसके अंदर एक सिंगल टेस्ट है। बैटरी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेस्ट। कलेक्शन ऑफ टेस्ट मतलब उसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, वो भले एक ही चीज़ को मेजर करें या अलग अलग चीज़ को मेजर करें, लेकिन उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि सारे टेस्ट पेन पेपर में मोड में ही हो, उसमें कुछ परफॉर्मेंस वाले भी हो सकते हैं, कुछ वर्बल भी हो सकते हैं, कुछ नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, बट कलेक्शन जो होता है उसको बैटरी बोलते हैं। तो इसको याद कैसे करोगे, सेल और बैटरी का डिफरेंस पता है जो तुमने पढ़ा था 10th में, कि सेल होता है जब एक होता है और बैटरी होती है जब बहुत सारे हो जाते हैं। तो वैसे ही टेस्ट जब एक है और बैटरी जब बहुत सारे हैं। ओके अब ये जो CAS टेस्ट है इसके अंदर वर्बल आइटम्स भी है, नॉन वर्बल आइटम्स भी हैं, एंड दिस इज फॉर 5 to 18 ईयर्स, सूटेबल फॉर 5 to 18 ईयर्स ऑफ इंडिविजुअल। एंड इसमें जो भी तुम्हारा रिजल्ट आता है वो कॉग्निटिव डेफिसिट्स के बारे में बताता है कि बच्चे के अंदर क्या क्या डेफिसिट्स है, क्या क्या प्रॉब्लम है। नाउ दीज आर द 4 पॉइंट्स दैट यू कुड राइट अगर क्वेश्चन आता है CAS पे। इट वाज गिवन बाय दास एंड निगलेरी एंड इट इज बेस्ड ऑन पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। दूसरा, इट कंटेन्स ऑल द वर्बल एंड नॉन वर्बल आइटम्स। तीसरा, इट इज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 18 ईयर्स। एंड चौथा है द रिजल्ट shows cognitive deficits in children or learning problems, right? So ये हमारा यहाँ तक हो गया। Now comes the third part of the chapter. हमने थ्योरीज पढ़ ली, हमने बेसिक्स पढ़ लिए। नाउ द थर्ड पार्ट जिसका पहला टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस किस चीज़ में, अभी तक हम इंटेलिजेंस पढ़ रहे थे, तो इंटेलिजेंस में नाउ सी, इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विद योर फ्रेंड और इफ़ यू कंपेयर माई सेल्फ विद यू, तो तुम देखोगे कि हमारी जो इंटेलिजेंस लेवल है, हमारा जो IQ है, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट। हर किसी भी दो इंसान को देख लो, उनका इंटेलिजेंस सेम, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस सेम नहीं होगा। सो वाई डू सच डिफरेंसेस अराइज, मतलब सबके इंटेलिजेंस में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों होता है। और रिसर्च हैव सजेस्टेड कि उसके दो रीजंस होते हैं, ठीक है, और उन दोनों रीजंस को हम नेचर और नर्चर से समझ सकते हैं। नेचर में आते हैं तुम्हारे जीन्स। जीन्स क्यों, क्योंकि नेचुरली हमारी बॉडी में पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, जीन्स कह लो, हेरिडिटरी कह लो। और दूसरा आता है हमारा एनवायरनमेंट, जो नर्चर में आता है, जहाँ पे हम पलते बढ़ते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट। नाउ इस पे ना इन दोनों के फैक्टर, अब जीन्स और एनवायरनमेंट दो चीज़ें तो इन्फ्लुएंस करती है, कौन सा ज़्यादा करती है, जीन्स ज़्यादा करती है या एनवायरनमेंट ज़्यादा करती है। तो इसको समझने के लिए बहुत रिसर्च हुई है, ट्विंस के ऊपर, सिबलिंग्स के ऊपर, फ्रेटर्नल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, डिफरेंट एनवायरनमेंट, सेम एनवायरनमेंट, सब पे रिसर्च हुई है। एंड उन रिसर्च के थ्रू हमें पता चला है ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। डिफरेंट रिसर्च शोज कि आइडेंटिकल ट्विंस अगर हैं ना, यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या है। आई नो यू नॉट फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, आई नो तुम्हारा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, बट स्टिल आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है दो बच्चे जिनका DNA बिल्कुल बिल्कुल सेम है। अब वो DNA सेम क्यों होगा, क्योंकि उनका जाइगोट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डिवाइड हुआ है। तो इफ द जाइगोट इज फॉर्म्ड विद द सेम एग और सेम स्पर्म, तो दोनों का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है या DNA कॉम्पोजिशन है वो सेम होगा ना। दैट्स व्हाई बोथ द ट्विंस हैव सेम DNA और जेनेटिक कॉम्पोजिशन, एंड उनको हमने साथ में रेयर किया है, मतलब दे आर रेयर टुगेदर, सेम एनवायरनमेंट में पले पड़े हैं। नाउ दे हैव सेम जीन्स एंड सेम एनवायरनमेंट, तो उनका जो इंटेलिजेंस है वो 0.90% कोरिलेट कर रहा है, मतलब 90% सिमिलर है। कोरिलेशन का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी सेम है एंड सेम एनवायरनमेंट में रेयर किए हैं, तो 0.90% उनका इंटेलिजेंस सेम होगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, 90% सेम होगा। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, आइडेंटिकल ट्विंस हमने लिए लेकिन उनको अलग एनवायरनमेंट में, दे आर रेयर्ड अपार्ट, अलग अलग एनवायरनमेंट में वो पले बड़े हैं, तो उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन तो सेम है, एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट है, तो वहाँ पे उनका इंटेलिजेंस जो होगा वो 0.72% कोरिलेट करेगा, मतलब 72% सेम होगा। वाई दिस डिफरेंस अराइज, बिकॉज ऑल्दो द जेनेटिक कॉम्पोजिशन इज सेम, उनको जो बैकग्राउंड मिला है, उनको जो एनवायरनमेंट मिला है वो काफ़ी अलग था। एक जो है वो एक एक बच्चे को किसी और फैमिली ने पाला है और दूसरी बच्चे को किसी और फैमिली ने पाला है, एंड द डिफरेंस इन इंटेलिजेंस शोज कि एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एनवायरनमेंट का हमारे सारे ही एट्रीब्यूट पे, नॉट जस्ट इंटेलिजेंस, यहाँ पे इंटेलिजेंस लिखा हुआ है,
बट इंटेलिजेंस के अलावा इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, हर चीज़ पे हमारे एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ दीज वर द टू जहाँ पे हमारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन वाज द सेम, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, राइट। अब तीसरा जो आता है वो फ्रेटर्नल ट्विंस पे है। अब फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस वो होते हैं जिनका डीएनए सेम नहीं होता, उनके डीएनए में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि एक एग को दो एग को एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तो मदर का डीएनए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब फ्रेटर्नल ट्विंस अगर हमने लिए हैं जिनका डीएनए सेम नहीं है पूरा पूरा, और उनको हमने साथ में पाला बढ़ा है, दे आर रेयर्ड इन द सेम एनवायरनमेंट, तो उनका जो इंटेलिजेंस है वो 0.60% को रिलेट करेगा। नाउ यू कैन से सी कि एनवायरनमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक कॉम्पोजिशन चेंज हुआ तो भी इंटेलिजेंस कम हो गया, सिमिलैरिटी तो भी डीएनए में सिमिलैरिटी कम हो गई, राइट, सॉरी इंटेलिजेंस में सिमिलैरिटी कम हो गई। तो दिस शोज कि ये दोनों हमें क्या बता रहे थे, पहले दोनों वो बता रहे थे कि जीन सेम है, लेकिन एनवायरनमेंट अगर अलग हो गया तो भी सेम नहीं होगा इंटेलिजेंस। एंड ये वाले दोनों हमें क्या बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट सेम है, लेकिन अगर जीन्स अलग हो गए तो भी हमारा इंटेलिजेंस सेम नहीं होगा। फ्रेटर्नल ट्विंस रेयर टुगेदर तो उनका इंटेलिजेंस 60% ही सेम होगा। नाउ सिबलिंग्स की बात आ रही है, अगर सिबलिंग्स को साथ में पले बड़े हैं सिबलिंग्स, तो उनका 50% ही इंटेलिजेंस सिमिलर होगा। अगर सिबलिंग्स अलग, मतलब सिबलिंग्स तो वो होते हैं जिनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी सेम नहीं होता, और यहाँ पे हमने उनका एनवायरनमेंट भी अलग कर दिया, तो उनका इंटेलिजेंस सिर्फ 0.25% को रिलेट करेगा। सो दिस इज हाउ द environment and the genetic composition impact the intelligence of a person. I hope you're understanding it कि कैसे कैसे, आई होप मैंने इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। ये 4 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं, यू हैव टू लर्न दिस कि अगर फ्रेटर्नल ट्विंस हैं उनको अलग एनवायरनमेंट सेम एनवायरनमेंट में रखा है तो क्या होगा, सिबलिंग्स हैं उनको सेम एनवायरनमेंट में रखा है तो क्या होगा, सिबलिंग्स को अलग एनवायरनमेंट में रखा है तो क्या होगा, आइडेंटिकल ट्विंस को सेम एनवायरनमेंट में रखा है तो क्या होगा, और आइडेंटिकल ट्विंस को डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखा है तो क्या होगा। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये याद करके जाना, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, डू नॉट इग्नोर दीज नंबर्स। ओके, नाउ दिस वाज द फाइंडिंग्स दैट केम फ्रॉम द स्टडी ऑफ ट्विंस। नाउ हमारा अडॉप्टेड चिल्ड्रन पे स्टडी है। तो अडॉप्टेड बच्चे जो होते हैं ना, इन द अर्ली ईयर्स मतलब छोटे जब होते हैं 0 to 5 ईयर्स के, या ज़्यादा छोटे जब होते हैं, तो उनका इंटेलिजेंस उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से काफ़ी सिमिलर होता है, मतलब रिजेंबल करता है। जिस रेंज में उनके असली मम्मी पापा का आईक्यू होगा, उसी रेंज में उन बच्चों का आईक्यू होगा। बट जब वो अडॉप्ट किए जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, थोड़े से टीनेज ईयर्स में चले जाते हैं, तो जो उनका जेनेटिक इन्फ्लुएंस है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड उनका जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उन उससे वो उनकी इंटेलिजेंस सिमिलर हो जाती है। सो दिस इज द फाइंडिंग दैट, ये जो फाइंडिंग है ये आई थी अडॉप्टेड बच्चों की रिसर्च पे, ठीक है। क्या है कि अडॉप्टेड बच्चे इनिशियल ईयर्स में अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, और एज दे ग्रो अप वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। नाउ डिसएडवांटेज, सो इंटेलिजेंस का हमारे सोशियो मतलब इंटेलिजेंस के ऊपर हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है उसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अब नेचुरल सिंपल सी बात है, जो बच्चे डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको ना तो प्रॉपर रिसोर्सेज मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ना प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, ना प्रॉपर एक्सेस टू टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज मिलेंगे। सो जितना ज़्यादा कम उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उतना ज़्यादा उनको ब्रेन फूड कम मिलेगा, उतना ज़्यादा उनका ब्रेन कम डेवलप होगा। दूसरा, जितना ज़्यादा उनको कम स्टिमुलेशन मिल रहा है एनवायरनमेंट से, स्टिमुलेशन हमें कैसे मिलता है, इफ़ यू गेट प्रॉपर एजुकेशन, इफ़ यू गेट स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, अगर टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस मिल रहे हैं तो उससे हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है, तो दैट ऑल्सो डेवलप्स योर इंटेलिजेंस। तो इन चीज़ों की कमी होने की वजह से, इन चीज़ों की लैक ऑफ दीज रिसोर्सेज लीड्स टू लो IQ इन चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, ठीक है। सो ये हो गया एक। दूसरा, ये भी पता चला है कि अगर डिसएडवांटेज होम के बच्चे को एक ऐसे घर में डाल दिया, ऐसे घर के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया जो बहुत अच्छी फैमिली है, जो बहुत हाई क्लास फैमिली है, तो उनके आईक्यू में सडनली एक स्पाइक दिखता है, उनका आईक्यू सडनली इंक्रीज हो जाता है, एंड ड्रास्टिक इंक्रीज दिखता है। अब ऐसा तो नहीं है वो आइंस्टाइन बन जाएगा, बट जो उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट होती है उससे अब वो उसकी डेवलपमेंट बेटर होगी, बिकॉज ऑफ बेटर रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ बेटर एजुकेशन। सो ये हो गया हमारा दूसरा। यही रीजंस लिखे हुए हैं यहाँ पे कि एनरिच्ड एनवायरनमेंट में न्यूट्रिशन होता है, एजुकेशन होता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, तो ये इंटेलिजेंस को बूस्ट करते हैं। और जो डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे पॉवर्टी हो गई, नेगलेक्ट हो गया, पुअर स्कूलिंग हो गया, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सप्रेस कर देते हैं। दिस इज वेरी बेसिक। नाउ एक चीज़ याद रखना कि जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी मतलब हमारा जीन्स जो होता है वो पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। सपोज तुम्हारे पेरेंट्स जो थे वो उनका इंटेलिजेंस था, उनके पास आईक्यू थी 120, तो अब तुम्हारे पास पोटेंशियल है, तुम्हारे पास इतना बड़ा बॉक्स है आईक्यू का, तुम उसको भर सकते हो। तो वो भरेगा या नहीं वो तो डिपेंड करता है तुम्हारे एनवायरमेंट पे ना, क्या पता तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तुम उसमें भर सको, ठीक है। तो हेरिडिटी हमें पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, एंड एनवायरमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। अगर तुम्हारे पास इतना ही पोटेंशियल है, तुम्हारे पेरेंट्स का आईक्यू ही इतना था, तो तुम्हारे पास कितना भी एनवायरमेंट में रिसोर्सेज हो तुम उसमें भर पाओगे क्या, ओवरफ्लो कर जाएगा, right? So remember this, heredity provides the range of potential and environment determines if it is fulfilled or not. Now another topic, next topic, I hope you have understood so far। जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, हमने बेसिक्स पढ़े, बेसिक्स के बाद हमने
थेरीज पढ़ी, थेरीज के बाद हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। नाउ द असेसमेंट, इंटेलिजेंस को मेजर कैसे करते हैं। सो द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी इंटेलिजेंस एज वेल एज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ फॉर्मल इंटेलिजेंस टेस्ट वाज एल्फर्ड बिनेट, और एल्फर्ड बिनेट के साथ साइमन था। इन दो लोगों ने पहला फॉर्मल इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, और उनका पर्पस क्या था, उनका पर्पस था टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ऐसे बच्चों को वो आइडेंटिफाई कर सके जिसके अंदर कोई ना कोई लर्निंग प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, राइट। नाउ अब इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था 1908 में। मेंटल एज का मतलब होता है कि एक इंसान की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कैपेसिटी कितनी है, इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक बच्चा है 5 साल का, ठीक है, तो उसकी बायोलॉजिकल एज जो है या क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 5 साल है। अब उसका दिमाग कितना वर्क कर रहा है, अगर उसका दिमाग 5 साल के जितने बच्चे जैसा काम कर रहा है तो उसकी मेंटल एज भी 5 साल है। लेकिन अगर वो 5 साल के बच्चे जैसा काम नहीं कर रहा है, वो उससे कम एज के बच्चे जैसा काम कर रहा है, 3-4 साल के बच्चे जैसा काम कर रहा है, तो उसकी मेंटल एज जो है वो क्या है, वो कम है क्रोनोलॉजिकल एज से। मतलब वो है तो 5 साल का, लेकिन वो एक्ट करता है 3 साल जैसे बच्चे जैसा, तो वो रिटार्डेड बच्चा होगा। और अगर ऐसा है कि वो बच्चा 5 साल का है लेकिन वो एक्ट करता है 6 साल जैसा, तो वो ब्राइट किड है। इफ मेंटल एज इज मोर देन क्रोनोलॉजिकल एज तो द चाइल्ड इज ब्राइट, इफ द मेंटल एज इज लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज देन द चाइल्ड इज डल। अब रिटार्डेड कब होगा, रिटार्डेशन अब तो उतना यूज नहीं होता, इट इज अ वेरी आउटडेटेड टर्म। अगर किसी को तुम रिटार्डेड बोलोगे तो दैट वुड बी टेकन एज एन इंसल्ट। बट रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट एल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। ही सेड इफ अ चाइल्ड इज 2 years बिलो हिज क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब किसी बच्चे की जो मेंटल एज है वो क्रोनोलॉजिकल एज से 2 साल कम है, तो वो रिटार्डेड है। सो मान लो अगर एक बच्चा है वो 10 साल का है और उसकी मेंटल एज जो है वो 6 साल की जितनी है, ठीक है, या 7 साल की जितनी है, तो वो रिटार्डेड माना जाएगा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सो दिस इज वेरी प्रिमिटिव, बहुत शुरुआत में आया था ये। उसके बाद और भी बहुत सारे मेथड्स ऑफ असेसमेंट आए हैं, जिनमें से एक है विलियम स्टोन। विलियम स्टोन जो था वो एक पहला बंदा था जिसने फॉर्मली, मतलब दूसरा कह लो, अल्फाबेट बिनेट के बाद दूसरा आया था, लेकिन ही वाज द पर्सन जिसने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन वो नंबर होता है जो तुम्हारी दिमाग की फंक्शनिंग, मतलब तुम्हारे ब्रेन का पावर क्या है वो बताता है। एंड उसको निकालने के लिए उसने ये फॉर्मूला दिया था कि आईक्यू कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जिसमें मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 हम लगा रहे हैं। अब यहाँ पे मेंटल एज तुम्हें पता है कि उसका ब्रेन कितना पावरफुल है, क्रोनोलॉजिकल एज उसकी एक्चुअल एज कितनी है, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सपोज एक बच्चा है वो 10 साल का है, ठीक है, और उसका दिमाग जो है वो अपने एज से 2 साल ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है, मतलब वो 12 साल के बच्चे जैसा एक्ट करता है, तो वो उसकी 12 साल उसकी मेंटल एज हो गई, ठीक है, एंड 10 साल उसकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई, और उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, उसकी आईक्यू कितनी है, 120। नाउ 120 का मतलब क्या होगा, अगर तुम्हारी आईक्यू 100 से ज़्यादा आ रही है तो तुम्हारा इंटेलिजेंस जो है वो अबव एवरेज है, मतलब पॉपुलेशन 50% लोगों से तुम्हारा इंटेलिजेंस ज़्यादा है, ठीक है। अगर तुम्हारा उल्टा 100 से कम आ रही है आईक्यू, तो तुम्हारी जो आईक्यू है, अच्छा मैंने उल्टा मार्क कर दिया, इफ़ योर आईक्यू इज मोर देन 100 तो अबव एवरेज है, इफ इट इज लेस देन 100 तो बिलो एवरेज है, मतलब 50% लोगों से कम है। अगर तुम्हारी इक्वल है 100 की तो वो बिल्कुल एवरेज है, ठीक है। ये एग्जांपल दिया हुआ है कि मेंटल एज 12 है, क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, तो आईक्यू 120 हो गई, अबव एवरेज। अगर मेंटल एज 7 है, क्रोनोलॉजिकल एज 10 है, तो आईक्यू 70 हो गई, लेस देन एवरेज। नाउ हाउ टू फिर शो इट ऑन अ ग्राफ, तो इसको किसी आईक्यू को किसी भी एक पॉपुलेशन की, किसी भी एक जगह के लोगों की आईक्यू को शो करने के लिए हम नॉर्मल कर्व यूज करते हैं, जिसको हम बेल कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप जो होता है वो बेल के जैसा होता है। अब ये बेल कर्व कहता क्या है वो दिखाती हूँ मेरे को। ओह सॉरी, नाउ दिस बेल कर्व शोज दैट, आई होप इट इज शेयरिंग, यस। सो दिस बेल कर्व शोज कि जो हमारे मेजोरिटी ऑफ लोग होते हैं ना, 50% लोग होते हैं, उनकी आईक्यू इस रेंज में होती है, 90 to 110, ठीक है, मेजोरिटी लोगों की। पहले तुम ये समझो कि आईक्यू का रेंज क्या होता है, वो छोड़ो। यहाँ देखो, ये जो 90 to 110 का रेंज है, दिस इज एवरेज, ठीक है। अगर किसी की आईक्यू 90 से 110 के बीच में है तो उसकी एवरेज आईक्यू है। अगर 110 से 130 के बीच में है तो वो अबव एवरेज है, ठीक है, ABO, अबव एवरेज। ऑन द अदर हैंड अगर 70 से 90 के बीच में है तो वो बिलो एवरेज है, राइट। नाउ ये तो हो गया एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अब बिलो एवरेज के बाद फर्दर कैटेगराइजेशन होता है, ठीक है। बिलो एवरेज में यहाँ पे बॉर्डर लाइन हो गया, बॉर्डर लाइन मतलब बस तुम आईक्यू डेफिशिएंसी की तरफ जाते जाते बच गए। अब उससे नीचे अगर होगा, अगर 55 से 65 के बीच में है तो आईक्यू डेफिशिएंसी है, ये दिख रहा है आईक्यू डेफिशिएंसी लिखी हुई, मतलब तुम्हारी आईक्यू बहुत कम है। लेकिन अगर वो 55 से 65 के बीच में है तो माइल्ड है। माइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम हर चीज़ को कर लोगे, हर टास्क को पूरा कर लोगे, बस तुम्हारी स्पीड जो है वो बाकियों से कम होगी। जो चीज़ें दूसरों को 1 घंटे में समझ आती है उस इंसान को 2 घंटे में समझ आएगी या 2.5 घंटे में समझ आएगी, लेकिन आ जाएगी, ठीक है। बट अगर 40 से 55 के बीच में है तो थोड़ा सा और वो डेफिशिएंसी बढ़ गई है, वो मॉडरेट में आ गई है, अब उसको ज़्यादा दिक्कत होगी।
अगर उससे भी कम हो गई, अगर 25 से 40 के बीच में है तो सिवियर। सिवियर मतलब उसको हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी, वो बहुत कम चीज़ें खुद इंडिपेंडेंटली कर पाएगा। एंड अगर 0 टू 25 के बीच में है तो प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब ना उसको 24/7 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर पाएगा, हमेशा उसको कोई ना कोई चाहिए, चाहे उसको खाना खिलाना हो, चाहे उसको कपड़े पहनाने हो, चाहे उसको डे टू डे टास्क करवाना हो, उसको हमेशा चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, अब हाई में देखो, अगर 130 से अबव जाता है तो वो वेरी सुपीरियर होता है, ऐसे लोगों को हम गिफ्टेड बोलते हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस आगे। ठीक है, गिफ्टेड। सो दिस इज हाउ द IQ इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, राइट। अब बेल शेप्ड होता है, एवरेज IQ 100 होती है, एंड सिमेट्रिकली अराउंड द मीन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी दिखाती हूँ। मीन है हमारा 100, एंड इफ यू लुक एट बोथ साइड तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, राइट। तो दैट इज व्हाट सिमेट्रिकल मीन्स की, इसको इसके ऊपर डालोगे तो वो एक दूसरे को कवर कर लेगा, तो सिमेट्रिकल अराउंड द मीन। नाउ सी दिस, ये अभी मैंने बता दिया कि जो लोग मिडिल में आते हैं वो 90 टू 110 होते हैं, मीन IQ 100 होता है, और बहुत कम लोग एक्सट्रीम एंड्स पे आते हैं, मतलब ये वाले जो साइड है ना, ये इसमें बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादातर लोगों का एवरेज IQ होता है, राइट। इस रेंज में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। ये हो गया। IQ रेंज भी बता दिया कि 70 से नीचे होगा तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, दिस इज क्रूशियल, ये याद होना चाहिए। अगर IQ 70 से नीचे है तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, 90 टू 110 के बीच में तो अबव एवरेज, और अगर 130 है तो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, राइट। बिलो 70 IQ डेफिशिएंसी, 90 टू 100 एवरेज, अबव 130 इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। तो गिफ्टेड कहाँ से शुरू हो रहा है, 130 से। डिसेबिलिटी कहाँ से शुरू हो रही है, 70 से, एंड बीच का जो है वो एवरेज है। अब ये देखो, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट इफ यू वांट टू गेट एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, रुक जाओ, वरना 5-10 सेकंड स्किप कर दो, आगे कर दो। जो 70 से बिलो वाले हैं वो कितने परसेंट लोग होंगे हमारी पॉपुलेशन में, 2.2%। ठीक है, मतलब जो डिसेबल्ड लोग होते हैं ना वो 100% में से सिर्फ 2% होते हैं। वैसे ही जिनका IQ 130 से अबव होता है, जो बहुत गिफ्टेड होते हैं, वो भी 2% होते हैं। तो देख रहे हो कितना कम पॉपुलेशन का अमाउंट है, ये जो लोग हैं ये कितने कम है, सिर्फ 4% लोग ऐसे होते हैं जो या तो गिफ्टेड होंगे या तो डिसेबल्ड होंगे। अब बॉर्डर लाइन में आते हैं 6% लोग, दोनों साइड बॉर्डर लाइन में, सुपीरियर में भी और इंफीरियर में भी। एंड एवरेज कितने लोग हैं, एवरेज IQ 50% लोगों का है, अबव एवरेज 16%, बिलो एवरेज भी 16%। सो दैट्स वाई बीच का जो पार्ट है वो सिग्निफिकेंट है। नाउ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो डिफाइन दिस, जो हमारा AAMD है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसने बोला है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग अलॉन्ग विद डेफिसिट इन अडैप्टिव बिहेवियर अपीयरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकंड पार्ट इज दिस, एंड थर्ड पार्ट इज दिस। तो पहला पार्ट जो है वो कहता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब उस इंसान की IQ सब एवरेज होगी, मतलब 70 से सब एवरेज मतलब बिलो एवरेज, ठीक है, सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज, सब मतलब बिलो, तो सिग्निफिकेंटली बिलो मतलब 70 से बिलो होगी, राइट। अगर उसकी IQ 70 से बिलो है तो वो डिसेबल्ड है। दूसरा फैक्टर क्या है, उसके अडेप्टिव बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डिफिसिट्स होगा, मतलब अडेप्टिव बिहेवियर उसके अंदर नहीं होंगे, डेफिसिट मतलब कमी, तो अडेप्टिव बिहेवियर की उसके अंदर कमी होगी। एंड द थर्ड पार्ट इज इंडिपेंडेंट, वो फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, अपने डे टू डे टास्क को, अपने खुद के कामों को अकेला वो काम नहीं मैनेज कर पाएगा। एंड लास्ट, उसका ऑनसेट कब होता है, IQ डेफिशिएंसी तुम्हें किसी के बिहेवियर में कब दिखेगा, 0 to 18 ईयर्स में दिख जाएगा। नाउ दिस इज एन एग्जैजरेशन, 18 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर किसी के अंदर IQ डेफिशिएंसी है तो स्कूल में एंटर होने से पहले दिख जाता है बच्चे के अंदर, राइट, क्योंकि हर चीज़ स्लो होती है, स्पीच स्लो होती है, वॉकिंग स्लो होती है, बॉडी मोटर स्किल डेवलपमेंट स्लो होती है, हर चीज़ स्लो होती है। नाउ इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज़ द कैटेगराइजेशन ऑफ IQ डिसेबिलिटी। तो IQ डिसेबिलिटी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो अभी मैंने तुम्हें ग्राफ में भी बताया था, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड मतलब कम, प्रोफाउंड मतलब बहुत ज़्यादा। सो माइल्ड माइल्ड जिनके अंदर IQ डेफिशिएंसी है, कम थोड़ी सी कमी है बट बहुत ज़्यादा उसका कुछ ऐसा इंपैक्ट नहीं है, वो किस रेंज में पड़ेंगे, 55 टू 70, 55 टू 70। तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, स्लो डेवलपमेंट होगा, इंडिपेंडेंटली रह पाएंगे, जॉब होल्ड कर सकते हैं, फैमिलीज होल्ड कर सकते हैं, मतलब स्कूल जाएंगे, जॉब करेंगे, फैमिली करेंगे, बट बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होंगे, हर चीज़ उनकी परसेप्शन वगैरह, हर चीज़ समझने की स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी। अब दूसरा आता है मॉडरेट। मॉडरेट मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो उनका IQ 35 से 55 के बीच में रहेगा। अब इनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट स्लो होगा, बाद देर से होगा, मोटर स्किल्स देर से डेवलप होगा, सेल्फ केयर स्किल्स को लर्न कर सकते हैं, सो उनको पहले खुद खुद करना नहीं आएगा, बट तुम ऑक्यूपेशनल थेरेपीज वगैरह के थ्रू उनको सिखा सकते हो कि खुद की केयर कैसे करनी है, एंड उनको सुपरविजन चाहिए होता है मोस्टली। नाउ थर्ड इज सिवियर। सिवियर होता है जब 20 से 40 के बीच में होता है, तो इनके अंदर भी बहुत लिमिटेड एबिलिटीज होती हैं, दूसरों पे डिपेंड करके ही काम करते हैं। एंड द
मोस्ट सिवियर इज प्रोफाउंड 20 से 25 के बीच। ये कंप्लीटली दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपना कोई भी काम खुद नहीं कर सकते, कांस्टेंट केयर की इनको ज़रूरत पड़ती है। बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आईक्यू डेफिशिएंसी से जिसको भी आईक्यू डेफिशिएंसी है उनकी एबिलिटीज़ और नीड वाइडली डिफर करती है। सबको एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती, सबके लिए जो प्रॉब्लम्स होती है वो डिफरेंट होती है। सो आईक्यू डेफिशिएंसी वी हैव कवर्ड। नाउ कम्स आईक्यू गिफ्टेड इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। तो हमने क्या किया, पहले बीच वाले लोगों को तो पढ़ लिया, अब हमने ये पढ़ लिया कि डेफिशिएंट कैसे होते हैं। अब पढ़ेंगे जिनका बहुत ज़्यादा आईक्यू होता है वो कैसे होते हैं। तो जिनका बहुत ज़्यादा आईक्यू होता है ना उसको हम गिफ्टेड बोलते हैं। ठीक है, गिफ्टेड क्या होता है? गिफ्टेडनेस इज एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी। जी फैक्टर पढ़ा था, याद है चार्ल्स बॉमेन के थ्योरी में कि देयर इज अ जी फैक्टर। जी फैक्टर मतलब एक सेट ऑफ एबिलिटीज जो तुम्हारे हर एरिया ऑफ लाइफ में अच्छे से फंक्शन करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। नाउ जी फैक्टर उनका बहुत एक्सेप्शनल होता है एंड ये हर हर एरिया में, अपने लाइफ के हर एरिया में सुपीरियर परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा सुपीरियर परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल बहुत हाई होता है। अब ये टर्म को किसने कॉइन किया था? लुई टर्मेन ने कॉइन किया था 1925 में, क्योंकि इसने 1500 बच्चों पे स्टडी करी थी जिनका आईक्यू 130 से ज़्यादा था। और बस ठीक है, ये समझ आ गया कि गिफ्टेड क्या होते हैं? एक्सेप्शनल जी फैक्टर, एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी जो सुपीरियर परफॉर्मेंस करने में हेल्प करता है हर एरिया ऑफ लाइफ में। एंड इसको कॉइन किया था लुई टर्मेन ने। नाउ देयर इज अ सिमिलर टर्म टैलेंट। गिफ्टेडनेस और टैलेंट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना, गिफ्टेड इज अ ब्रॉड टर्म। ब्रॉड टर्म मतलब वो हर अलग अलग एरियाज में यूज कर सकते हो तुम। अगर कोई गिफ्टेड है तो वो डिफरेंट एरियाज में गिफ्टेड होगा। एंड अब टैलेंट मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में उसका टैलेंट होना है। जैसे मैं कहूँ कि आई एम वेरी टैलेंटेड सिंगर, आई एम अ वेरी टैलेंटेड कुक, आई एम अ वेरी टैलेंटेड डांसर, आई एम अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, आई एम अ वेरी टैलेंटेड साइंटिस्ट। तो टैलेंट मतलब मेरा जो टैलेंट है, मेरे अंदर जो एबिलिटीज है वो एक एरिया से में लिमिटेड है। मुझे सिर्फ सिंगिंग अच्छी आती है या सिर्फ कुकिंग अच्छी आती है। गिफ्टेड मतलब हर एरिया में अच्छी हूँ मैं। तो गिफ्टेड हो गया जी फैक्टर और टैलेंट हो गया एस फैक्टर। क्लियर है? चार्ल्स फॉरमैन के टू फैक्टर थ्योरी से हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। नाउ गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं तुम उनको अर्ली ईयर्स में मतलब स्कूल जाने से पहले या 0 to 5 ईयर्स में कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब नॉर्मल बच्चों से, इवन ड्यूरिंग इन्फेंसी ईयर्स नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा होता है उनका अटेंशन स्पैन। अर्ली डेवलपमेंट हो जाती है, लैंग्वेज बोलने जल्दी लग जाते हैं और बोलने में भी ना वो फुल फ्रेजेस यूज़ करेंगे, शॉर्ट ऐसे। उनकी स्पीच बहुत ज़्यादा ऐसे तुतलाने वाली नहीं होगी, क्लियर स्पीच होगी एंड फुल सेंटेंसेस में बात करते हैं, वो फ्रेजेस में बात करते हैं। ठीक है, न्यू स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंस को सीख करते हैं, उनकी मेमोरी रिकॉग्निशन हाई होती है, चीज़ें याद रखते हैं और चीज़ों को रिकॉग्नाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड एनवायरमेंट चेंजेस को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं, आसपास में कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो उसे एकदम से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अर्ली साइंस गिफ्टेडनेस के जो हम बच्चों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ गिफ्टेड बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सो एडवांस लॉजिकल स्किल्स होगी उनके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी। आई डॉन्ट नो इफ यू वॉच रील्स ऑन इंस्टाग्राम तो तुमने देखा होगा कि ऐसी रील्स आई हैं एक दो जिसमें ना बच्चे को वो बॉक्स देते हैं, बॉक्स के अंदर ऐसे छोटे बच्चों को खेलने के लिए ना ऐसे टॉयज आते हैं। ठीक है, तो उसमें एक टॉय ऐसा आता है जिसके अंदर एक बॉक्स होता है एंड उस बॉक्स के अंदर ना डिफरेंट शेप्स के जैसे होल्स बने होते हैं। ठीक है, एंड उसी होल्स की शेप के ना ब्लॉक्स होते हैं, राइट? तो जैसे सपोज एक सर्कल है तो बच्चे को तुम, यहाँ पे बच्चा है, मतलब डोंट माइंड माय ड्राइंग प्लीज, बच्चा है, तुमने उसको बोला ये सर्कल इन तीनों में से किस में जाएगा, तो नॉर्मल बच्चा क्या बोलेगा? इसमें जाएगा, राइट? अब ऐसे करके एक रेक्टेंगल है, वो ये सॉरी हाँ रेक्टेंगल ही तो ये है कि इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। स्टार है, ये किस में जाएगा? तो ये इसमें जाएगा। एंड ये जो रील मैंने देखी थी उसमें था कि वो बच्चे ने क्या किया, इसका लिड ओपन किया और सारे के सारे एक साथ डाल दिए। सो दैट शोज कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी ज्यादा है, राइट? देन एक और बच्चा था, उसने क्या किया, जो सबसे बड़ा होल था रेक्टेंगल वाला, उसी में से सारे डाल दिए उसी से। तो दैट शोज कि उस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी है इन अ वेरी यंग एज। तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके अंदर लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा होती है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली अपने लेवल पे वो ऐसे रॉकेट साइंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग नहीं कम कर देंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम उनको दी जा रही है वो प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन को फास्ट प्रोसेस कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे भी तो है ना कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, उसने कितनी जल्दी सोचा कि बॉक्स का ढक्कन निकाल के भी तो मैं डाल सकता हूँ ना, टाइम क्यों वेस्ट करूँ? ठीक है, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब चीज़ों की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको ग्रुप्स में कैटेगराइज या डिफरेंशिएट कर पाते हैं। क्रिएटिव होते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग करते हैं, अगेन यहाँ पे दिख रहा था ओरिजिनल थिंकिंग। उनके अंदर हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब दूसरों की जैसे थिंकिंग नहीं करते, अपना इंडिपेंडेंटली सोचते हैं एंड अकेला काम करना प्रेफर करते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये है गिफ्टेडनेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका। टीचर बता सकती है, स्कूल परफॉर्मेंस से पता चलेगा, पेरेंट्स से पता चलेगा, पेयर ग्रुप से, राइट? सो ये हो गया हमारा गिफ्टेडनेस। नाउ टाइप्स ऑफ टेस्ट। टाइप ऑफ टेस्ट अनदर टॉपिक है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। कोई भी जो टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट ले लो, पर्सनालिटी टेस्ट ले लो, बट यहाँ पे सिंस हम इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं तो इंटेलिजेंस टेस्ट के टर्म्स में बात करते हैं। 3 कैटेगरीज में तुम टाइप टेस्ट को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर टेस्ट एक बार में एक इंसान पे हो रहा है तो वो इंडिविजुअल टेस्ट है, अगर एक बार में बहुत सारे लोग उसको कर रहे हैं तो वो कौन सा टेस्ट है? वो ग्रुप टेस्ट है, राइट? अब इंडिविजुअल टेस्ट
की डेफिनेशन ये हो गई कि एडमिनिस्टर्ड टू वन पर्सन एट अ टाइम। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो भी एग्जामिनर होता है वो उस पर्सन के साथ, सब्जेक्ट के साथ प्रॉपर रैपो बिल्ड करता है, कनेक्शन बिल्ड करता है, उसके इमोशंस को, रिएक्शंस को ऑब्जर्व करता है, राइट। तो ये एक बेनिफिट हो गया। तो इसमें एडवांटेज डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, पर्सनलाइज्ड अप्रोच। लिमिटेशन क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। मेरे पास 30 लोग हैं, 30 लोगों का मुझे टेस्ट करना है, मैं एक एक करके सबका टेस्ट करूंगी, सबके साथ एक एक करके बात करूंगी, तो टाइम लगेगा मुझे, टाइम कंज्यूमिंग है। और ट्रेनिंग चाहिए होती है प्रॉपर। इसका एग्जाम्पल कोई भी टेस्ट ले लो जो एक इंसान पे एक बार में होता है, भले RSVM ले लो, ये स्टैंडर्ड बिनेट टेस्ट है, कोई भी ले लो ना, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा है। सो इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू डू इट, अदरवाइज लीव इट। नेक्स्ट, ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट एक बार में काफी सारे लोगों पे हो जाता है, यूजुअली रिटन होता है एंड मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में होता है। नाउ दिस इज गुड फॉर मास टेस्टिंग। क्यों मास टेस्टिंग, मतलब बहुत सारे लोगों पे एक बार करने में अच्छा है, वाई, बिकॉज टाइम सेव हो रहा है इसमें। अब डिमेरिट इसका ये है, लिमिटेशन ये है कि इसमें कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता। मुझे 30 लोगों का टेस्ट साथ में करना है, तो मैंने तो सबको टेस्ट दे दिया, जनरलाइज इंस्ट्रक्शन दे दी कि डू दिस, डोंट डू दिस, ये वो, लेकिन मैं एक एक करके किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाई ना, तो पर्सनल कनेक्शन नहीं बिल्ड हुआ, कोई इमोशनल इंसाइट नहीं मिला मुझे, ये नहीं पता चला कि एक-एक सब्जेक्ट उस टाइम पे क्या फ़ील कर रहा था। अब इसका एग्ज़ाम्पल मत ही लिखना, ठीक है? बेस्ड ऑन आइटम्स, ये पहली कैटेगरी हो गई थी हमारी बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन आइटम्स, मतलब उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं। अगर क्वेश्चन लैंग्वेज को यूज़ करके लिखे हुए हैं, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो रिटन हो, अगर लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, सो दैट वुड बी अ वर्बल टेस्ट, ठीक है? वर्बल अब तक तुमने सुना होगा, जहाँ पे भी वर्बल, वहाँ पे वर्बल का मतलब होता था स्पोकन, बट नहीं, साइकोलॉजी में तुम जब वर्बल देख रहे हो ना, तो इट मीन्स यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो अगर टेस्ट लैंग्वेज पे बेस्ड है, तो दैट इज अ वर्बल टेस्ट, कुड बी रिटन, कुड बी ओरल। अब ये जो टेस्ट है, इट रिक्वायर्स पीपल टू बी लिटरेट, मतलब इसके अंदर लिटरेसी चाहिए होती है। ऑब्वियसली अगर तुम लैंग्वेज लिख रहे हो या लिख के किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो अगर उसको पढ़ना नहीं आता, तो वो कैसे कैसे उस टेस्ट का आंसर देंगे। तो लिटरेसी इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स चाहिए, लिटरेसी चाहिए, लिटरेट सब्जेक्ट के लिए होता है। सो इलिटरेट सब्जेक्ट के लिए या नॉन नेटिव स्पीकर के लिए सूटेबल नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल कोई भी वो टेस्ट ले लो जिसमें रिटन लैंग्वेजेस में क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्कैट हो गया, SAS हो गया, EPQ हो गया, कोई भी जिसमें रिटन क्वेश्चंस होते हैं। नॉन वर्बल वो होते हैं जिसमें, नॉन वर्बल मतलब वर्बल लैंग्वेज, तो नॉन वर्बल नो लैंग्वेज। अब यहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं यूज हो रही, पिक्चर्स डायग्राम्स यूज हो रहे हैं, तो ये कल्चरली फेयर होते हैं क्योंकि इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। इलिटरेट लोगों पे भी हम कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बेनिफिट। एंड फिर भी कुछ कल्चरल बायस आ सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हो गया रेवेंस मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पैटर्न्स है, ऐसे करके पैटर्न्स होते हैं ना उसके अंदर, तो लैंग्वेज कुछ रिटर्न ही नहीं है, पिक्चर देखो कौन सा पजल आएगा वो बताओ, काम खत्म। एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट जहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ टास्क कंप्लीट करना होता है, कोई रीडिंग नहीं, कोई राइटिंग नहीं चाहिए, बस मैंने तुम्हें कुछ ब्लॉक्स दे दिए, कोई पिक्चर बनाने को दे दी, कोई भी काम करने को दे दिया, टास्क कंप्लीट करने को दे दिया, तो वो हो गया तुम्हारा परफॉर्मेंस टेस्ट। अब ये उनके लिए अच्छा है जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है, या बच्चे हैं इलिटरेट हैं, उनके लिए अच्छा है। एंड इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉल्स ब्लॉक टेस्ट। तो ये हमारा सेकंड कैटेगरी हो गई बेस्ड ऑन फॉर्मेट, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, नॉन लैंग्वेज और परफॉर्मेंस टेस्ट। नाउ कल्चरली फेयर ऑन कल्चर के बेस पे दो टेस्ट होते हैं, कल्चरली बायस्ड एंड कल्चरली फेयर। तो कल्चरली बायस्ड टेस्ट वो होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक कल्चर के लिए बने होते हैं, एक कल्चर को ध्यान में रख के बनाए गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने वुमेन के लिए टेस्ट बनाया एंड अर्बन वुमेन के लिए बनाया, तो वो लोअर क्लास या मिडिल क्लास लोगों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्वेश्चन होंगे, वो रेफरेंसेज होंगे जो अर्बन क्लास वुमेन ही समझ पाएगी। या सपोज एक टेस्ट ऐसा बना है जो वेस्टर्न पॉपुलेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो अगर मैं उस टेस्ट को इंडियन पे या अफ्रीकन पे करूँ तो वो उसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जो उसको वेस्टर्न कल्चर ही समझ पाए, वेस्टर्न कल्चर के लोग ही समझ पाएंगे। सो दैट इज कल्चरली बायस टेस्ट एंड ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। एंड कल्चरली फेयर टेस्ट वो होते हैं जो किसी भी कल्चर पे तुम यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो एक कल्चर के लिए ही होता है या एक कल्चर ही उसको समझ पाएगा, कल्चर न्यूट्रल टेस्ट होते हैं, तो ये किसी पे भी कर सकते हैं। एंड इट इज गुड फॉर कंपैरिजन पर्पसेस। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैंग्वेज एंड कल्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ एक तुम्हारे ना एनसीईआरटी में बॉक्स है मिस यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट करके, तो उसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि अगर तुम इंटेलिजेंस टेस्ट यूज कर रहे हो तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या कोई पर्सन कैसे उसको मिसयूज कर सकता है। सो द फर्स्ट साइड इफेक्ट आई वुड से इज स्टिग्मेटाइजेशन। तो सपोज कोई बच्चा है और उसका अच्छा आईक्यू नहीं आया, अच्छा आईक्यू स्कोर नहीं आया, तो उसकी वजह से उसके आसपास के जो बच्चे हैं, उसके फ्रेंड्स हैं या टीचर्स हैं, उसको स्टिग्मेटाइज कर सकती है, नेगेटिवली देख सकती है। एंड इसकी वजह से क्या होगा, उसका आईक्यू स्कोर की वजह से उसका सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा, मोटिवेशन रिड्यूस हो जाएगा, तो वो उसकी परफॉर्मेंस को आगे इन्फ्लुएंस करेगा ना। अगर आईक्यू टेस्ट लो या हाई आता है तो उसकी वजह से पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं बच्चों में। सो वो अनफेयर ट्रीटमेंट होगा, पार्शियलिटी होगी, सोशल एक्सक्लूजन होगा कि चलो एक क्लास है उसमें एक बच्चे का आईक्यू बहुत कम आया है, तो मे बी टीचर्स उसको डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही नहीं देंगे, या एक बच्चे का आईक्यू बहुत हाई आया है तो मे बी टीचर्स उसको सारे डिफिकल्टी क्वेश्चन देंगे, तो पार्शियलिटी हो सकती है, राइट। फिर अगर कोई बच्चा सेल्फ टेस्टिंग कर रहा है ऑनलाइन साइट्स पे जाके या इंटरनेट पे, तो ड्यू टू
इनप्रॉपर गाइडेंस या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो उसको गलत तरीके से एडमिनिस्टर कर सकता है, वो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। सो एक वो प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा जो नहीं लिखा है इसमें इज दैट कि जो IQ टेस्ट अभी हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं ना, दे वर एस्टैब्लिश्ड इन अर्लियर टाइम, डेवलप्ड इन अर्लियर टाइम्स। तो उस टाइम पे वो सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मेजर करते थे, पूरा पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को मेजर नहीं करते थे। सो इफ समवन हैज़ इंटेलिजेंस इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो मे बी मतलब म्यूजिकल हो गया या स्पेशियल हो गया, उनमें उनमें वो इंटेलिजेंट है, लेकिन रीजनिंग में नहीं है, और टेस्ट सिर्फ रीजनिंग को मेजर कर रहा है, तो उसका मोरल डाउन हो जाएगा। सो दिस कुड बी द मिसयूजेस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग अ इंटेलिजेंस टेस्ट। Yes, so the next topic is culture and intelligence. In this topic, we have to study about the culture, different cultures that we have, and how do these cultures impact the development of intelligence or IQ. So now, whichever environment you live in, we have already studied this in individual differences, that environment to a great extent influence how, what kind of intelligence we have, and sorry. Yeah, so culture to a great extent affect how the intelligence develops in a person, or what kind of intelligence that person will have, right? So suppose you live in a Western culture, so the qualities that are prioritized, they are different compared to the Indian culture, Asian culture, or let's just say African culture, or a bigger, like, okay, calm down. Culture and intelligence, this is the next topic that we have to study, and in this topic we are going to study about how culture influence intelligence, or in whichever culture you're living, how does it develop the influence the development of intelligence. Now we have already studied that intelligence helps us in adapting to our environment, but on this, at the same time, the cultural environment that you live in also shapes the kind of intelligence that you will have. And that brings me to Vygotsky's point of view. Vygotsky was a psychologist, and according to him, in the initial years, in the developing years, the development of intelligence is universal. That is, it grows at the same pace and in the same manner, regardless of where you live or regardless of the culture that you're growing in. But as we grow up, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, it is heavily influenced by the culture that we are growing into. So suppose if you're growing into a technologically advanced society, generally we consider the Western societies to be technologically advanced societies. Now in those kind of society, personal achievements are prioritized, and those achievements are based on reasoning and judgment skills, right? On the other hand, less technologically developed societies, for example Asian African societies, they value social and emotional skills. So इसको सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो, तो जो हमारी टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ होती है, वो पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करती है। सिंस वो पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करती है, तो वो बच्चे को ऐसी स्किल सिखाएगी जो उसको डेवलप करने में, इंडिपेंडेंटली वर्क करने में हेल्प करेगी। और वो स्किल्स क्या होते हैं? जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, क्विक थिंकिंग, मेंटल मैनिपुलेशन एक्सेट्रा। यहाँ पे अटेंशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और स्पीड जैसी स्किल्स को वैल्यू किया जाता है। इसीलिए जो वेस्टर्न टेस्ट होते हैं, वो इन्हीं क्वालिटीज़ को चेक करने के लिए बने होते हैं। अब नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ जो होती है, एशियन एंड अफ्रीकन सोसाइटी, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस पे कम एम्फेसिस किया जाता है, वहाँ पे कल्चरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। जैसे सोशल स्किल्स हो गई, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया, कलेक्टिव ऑपरेशंस हो गया, इन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। बिकॉज इवेंचुअली दे बिलीव दैट इवेंचुअली द पर्सन हैज़ टू बी इन द टेक्नोलॉजिकली, इवेंचुअली द पर्सन हैज़ टू ऑपरेट इन अ सोसाइटी ओनली। सो सिंस द पर्सन हैज़ टू ऑपरेट इन द सोसाइटी, तो उसको सबको साथ में लेके चलना है, एंड दैट्स वाई ये सारी स्किल्स आनी चाहिए, राइट? नाउ यहाँ देखो, इंटीग्रल इंटेलिजेंस, इंडिया में जो हम इंटेलिजेंस को वैल्यू करते हैं, इट इज कॉल्ड इंटीग्रल इंटेलिजेंस। अब इसी का काउंटर पार्ट होता है बुद्धि। बुद्धि वाज अ टर्म जिसको जेपी दास ने सबसे पहले यूज किया था। बुद्धि क्या होता है, या इंटीग्रल इंटेलिजेंस क्या होती है? इट स्ट्रेसेस ऑन कनेक्टिविटी विद सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट। मतलब इंटेलिजेंट पर्सन वो है जो सोशल एनवायरनमेंट को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट को, अपने खुद के कैपेबिलिटीज को साथ में रख के चल सकता है। तो बेसिकली एक होलिस्टिक व्यू देता है एक इंटेलिजेंस की, जहाँ पे कॉग्निटिव, नॉन कॉग्निटिव दोनों फैक्टर्स को हम देखते हैं। कॉग्निटिव फैक्टर्स मतलब मेंटल फैक्टर्स, मेंटल एक्सपीरियंसेस, नॉन कॉग्निटिव उसके अलावा जो फैक्टर्स हो गए। तो जेपी गिलफर्ड के अंदर इंटेलिजेंस या बुद्धि में क्या क्या आएगा? मेंटल एफर्ट आएगा, जो उसका डिटरमाइंड एक्शन है, जो उसका पर्पसफुल गोल है, वो आएगा। फीलिंग एंड ओपिनियन आएंगे, एंड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस आएगी। ठीक है, अब इसके अंदर कॉग्निटिव, नॉन कॉग्निटिव दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं। एंड जनरली वी से दैट इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन हैज 4 फैसेट्स, मतलब 4 टाइप्स या 4 फेसेस होते हैं। द फर्स्ट इज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, जिसके अंदर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा आएगी। देन सेकंड इज व्हाट हैपेंड टू द माउस, देन सेकंड इज सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस के लिए रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, कमिटमेंट फॉर एल्डर्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। इमोशन मतलब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर इमोशन, अदर्स इमोशन, यू आर एबल टू navigate through the emotions। और entrepreneurial में कमिटमेंट, परसिस्टेंट, डिसिप्लिन जैसी चीज़ें आएंगी। सो दीज आर द 4 ग्रुप्स ऑफ
व्हाट यू से क्वालिटीज और फैसेट्स जो इंटेलिजेंट इंसान को इंटेलिजेंट बनाती है इंटीग्रल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सो मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी में टेक्निकल स्किल्स को प्रेफर करते हैं एंड जो लेस टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ है वहाँ पे नॉन कॉग्निटिव और कॉग्निटिव दोनों स्किल्स को प्रेफर करते हैं, राइट। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन ना बहुत बारी आया हुआ है अबाउट द डिफरेंस इन दीज टू सोसाइटीज़ एंड इन दोनों सोसाइटी में कैसे लोग अलग अलग स्किल्स को डेवलप करते हैं। अब केस स्टडी के बेसिस पे इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि सो एंड सो पर्सन वाज ग्रोइंग अप इन अ वेस्टर्न सोसाइटी और अमेरिकन सोसाइटी एंड सो पर्सन वाज ग्रोइंग अप इन अ विलेज और एन लेस एडवांस सोसाइटी। नाउ दे वन पर्सन हैज दीज स्किल्स, द अदर पर्सन हैज दीज स्किल्स, कैन यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट दे हैव एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कलेक्टिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। ये वेस्टर्न और टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड इंटीग्रल इंटेलिजेंस है, वहाँ पे इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ है, बोथ आर डिफरेंट। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। अब हमारा चैप्टर ना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज जैसे तुम्हारी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस होती है कि तुम चीज़ों को समझ पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो इन्फॉर्मेशन को, उससे एक मीनिंगफुल वे में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो। इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि तुम अपने इमोशंस को समझ पा रहे हो, तुम अपने इमोशंस को समझने के बाद उनको इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पा रहे हो और उसको यूज़ कर पा रहे हो दूसरों को समझने के लिए, ठीक है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले सेलोवे एंड मेयर ने दिया था एंड डिफाइन कैसे किया उन्होंने इसको, दे डिफाइंड इट एज द एबिलिटी टू मॉनिटर one's own and others emotion, discriminate among them and use this information to guide their action and thinking, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या है कि वो खुद के और दूसरों के इमोशन को मॉनिटर कर पाए, देख पाए, समझ पाए, ठीक है, अलग अलग इमोशंस में डिस्क्रिमिनेट कर पाए और ये जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर रहा है अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करके उनको समझ के, तो उस इन्फॉर्मेशन को वो खुद की थिंकिंग और एक्शन करने में यूज कर पाए, ठीक है। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, गिवन बाय सेलोवे एंड मेयर। अब ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, और ईक्यू, इमोशन कोशेंट, इज अ सेट ऑफ स्किल्स जिसके अंदर एक्यूरेट अप्रेजल ऑफ इमोशंस आता है। एक्यूरेट अप्रेजल इज इवैल्यूएशन, सो यू आर एबल टू इवैल्यूएट योर इमोशंस एक्यूरेटली, ठीक है, मतलब तुम अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझ पा रहे हो। यू आर एबल टू एक्सप्रेस इट अप्रोप्रिएटली, एक्सप्रेस मतलब तुम्हें जहाँ पर जो इमोशन शो करना चाहिए तुम वहीं पर उस इमोशन को शो कर रहे हो, सो दैट मीन्स अब एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस अप्रोप्रिएटली। अब एक्सप्रेशन तो तभी अच्छे से हो पाएगा ना जब तुम उसको समझोगे, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर पहले समझ लिया, फिर उसको शो कर लिया, अब उसको शो कर लिया फिर जब जरूरत पड़ी तो उसको रेगुलेट भी कर लिया, तो थर्ड स्किल इज रेगुलेशन ऑफ इमोशन एंड फोर्थ इज इट इज इसेंशियली द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस। बेसिकली ये क्या है कि इंटेलिजेंस ही है लेकिन फीलिंग के टर्म्स में है। सो बेसिकली यू नो कि तुम्हारे इमोशंस का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारी बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में, एंड दैट्स व्हाई यू आर पेइंग अटेंशन टू इट। सो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इट, सेकंड इज expressing it, third is regulating it, and fourth is understanding the impact of it, right now। ये तो हो गया डेफिनेशन, ये हो गए उसके स्किल सेट। अब यहाँ पे आएगा व्हाई इज इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट। सो अ लॉट ऑफ रिसर्चर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट हैविंग एन हाई IQ इज गुड बट इट कैन नॉट गारंटी सक्सेस इन लाइफ, बट हैविंग अ हाई EQ is one of the co-determinant or determinant of success in life। So अगर तुम्हारे पास हाई IQ है तो ज़रूरी नहीं है तुम सक्सीड करोगे, बट जनरली पीपल विद हाई EQ सक्सीड इन लाइफ। नाउ व्हाई डज दैट हैपन, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है, लोगों को ट्रीट कैसे करना है, एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ पीपल स्किल्स they are able to deal with people efficiently and eventually they succeed in life। So the first point here is having high IQ and good academic record does not guarantee success, बट यहाँ पे आएगा बट, ओके बट नहीं आया, यहाँ पे ऐड कर लेना बट हाई EQ इज अ इंडिकेटर ऑफ सक्सेस, ठीक है। बिकॉज फैमिली इशूज़ के टाइम पे वो इफेक्टिवली फैमिली से इंटरेक्ट कर पाएंगे, वर्क प्लेस डिफिकल्टीज़ को एफिशिएंटली वो ओवरकम कर पाएंगे, लोगों से जो मिसकम्युनिकेशन हो रही है उसको आइडेंटिफाई करके कम्युनिकेट कर पाएंगे इफेक्टिवली, इंटरपर्सनल रिलेशंस को, जो भी इंटरपर्सनल रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है उसको इफेक्टिवली हैंडल कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई दे सक्सीड इन लाइफ। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अब क्रिएटिविटी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती है। अब यहाँ पे ये समझो कि क्रिएटिविटी का मतलब ड्राइंग करना नहीं है, ठीक है, या क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, उसको उसको तुम कुछ भी डिज़ाइन करने को दे दो अच्छा करेगा, नहीं। क्रिएटिविटी उससे बहुत ज़्यादा है। क्रिएटिविटी इज कमिंग अप विद डिफरेंट सोल्यूशन फॉर वन प्रॉब्लम और थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन अ वेरी न्यू एंड यूनिक मैनर, कमिंग अप विद मेनी डिफरेंट आइडियाज़, ठीक है। अब क्रिएटिविटी जो होता है वो डिफरेंट लेवल्स पे होता है, हाई क्रिएटिविटी, मॉडरेट क्रिएटिविटी, ठीक है, एंड लो क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी डेवलप कैसे करता है, तो अगेन जैसे इंटेलिजेंस डेवलप करता है बाय एन इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सेम क्रिएटिविटी भी डेवलप करता है बाय एन इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब क्रिएटिविटी पे हमारी एक रिसर्च है, इट वाज कंडक्टेड बाय टोमैन ऑन 1500 चिल्ड्रन, ठीक है।
दिस इज एन एग्जाम्पल रिटन इन बुक की क्रिएटिविटी। एक बच्चा होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, हाईली इंटेलिजेंट है, बट वो क्लास में ओरिजिनलिटी शो नहीं करता, कभी भी ज़्यादा ऐसे ओरिजिनल आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं देता। ऑन द अदर हैंड दूसरा बच्चा है जो इंटेलिजेंट तो है, बट वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ के लाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है। तो ये तुम्हें बताता है कि अगर किसी के अंदर IQ है तो दैट डज नॉट इंश्योर कि वो क्रिएटिव भी होगा। लेकिन अगर किसी Right. So these are the characteristics or attributes that a creative person shows और creative process, मतलब कोई भी creative person होगा वो कुछ भी process कर रहा होगा तो उसमें दिख जाएगी। First is originality and spontaneity. तो जो भी वो ideas देगा, जो भी वो solutions देगा, वो original होंगे and spontaneous होंगे। वो कभी भी कितने भी ideas produce कर पाएगा, ऐसे नहीं है कि उसको बैठ के तैयारी करनी पड़ेगी, because it is very natural to them. Ability to see new relationship and perspective. They can easily identify different patterns and relationship. Divergent thinking. I told you कि एक problem के लिए वो multiple solutions या multiple तरीके से सोचेंगे। Problem solving skills, persistent motivation and openness to experience. So these are the attributes of a creative person. Now what is the difference between creativity test and intelligence test? तो अगर कोई टेस्ट क्रिएटिविटी मेजर करने के लिए बना है तो वो ओपन एंडेड होगा। ओपन एंडेड यू नो कि सब्जेक्टिव होगा, उसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे एंड ऑप्शंस उसके सब्जेक्टिव ऑप्शंस नहीं होंगे, उसको सब्जेक्टिव आंसर देना होगा, अपने वर्ड्स में आंसर दे सकता है। सो उसके मल्टीपल करेक्ट पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, बिकॉज इट एनकरेजेस इमेजिनेशन एंड ओरिजिनलिटी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर इंटेलिजेंस टेस्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव होगा, राइट, और क्लोज एंडेड होगा। ठीक है। ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो सब्जेक्टिव आंसर या इमेजिनेशन या ओरिजिनलिटी को नहीं प्रमोट करते। वन क्वेश्चन इज ओनली वन करेक्ट आंसर। अब क्रिएटिविटी टेस्ट जो होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को एसेस करते हैं, मतलब मल्टीपल आइडियाज जनरेट करना, नई नए एसोसिएशंस बनाना, इमेजिनिंग पावर एंड गेसिंग कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। एंड ऑफ द चैप्टर हमने कितने सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए। द फर्स्ट टॉपिक वॉज असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। देन ये हमने 8 थ्योरीज पढ़ी हैं। 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, हायरार्कियल मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ट्रायर्किक एंड पास मॉडल इंटेलिजेंस। अब इन सारी थ्योरीज के बाद हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे आते हैं IQ में, नेचर एंड नर्चर कैसे इंपैक्ट करता है IQ डेवलपमेंट को, देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ असेसमेंट, IQ टेस्ट, IQ कैसे निकालते हैं, उसको प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ पे, क्या डिफरेंसेस होते हैं IQ स्कोर्स के बेसिस पे। फिर हमने पढ़ा गिफ्टेडनेस का कॉन्सेप्ट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट, मिसयूजेस ऑफ टेस्ट, देन कल्चर कैसे इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करता है, कल्चर के बाद इंडियन ट्रेडिशन में हमारा इंटेलिजेंस क्या है, देन इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और क्रिएटिविटी क्या है। सो दिस वाज द चैप्टर। नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इफ यू वांट मी टू स्पेसिफिकली शेयर क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर, then you can comment on this video. I'll share a PDF of PYQs of chapter first, or I'll bring a test so you can watch this video, you can read the NCERT, and I need you all to read the NCERT. That is not optional. NCERT is not optional. If you do not read NCERT, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। रीड एनसीईआरटी, दो दीज नोट्स आर फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, बट स्टिल। दूसरा, वंस यू हैव रेड द एनसीईआरटी, वंस यू हैव स्टडीड द एंटायर चैप्टर, प्रैक्टिस MCQs एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो आई वाज थिंकिंग आई ब्रिंग अ टेस्ट, डू दैट टाइम टेस्ट, और उतने ही टाइम में करना जितना टाइम उस टेस्ट को असाइन किया है, सो दैट यू नो कि व्हाट इज योर स्पीड। वंस यू हैव डन दैट, चेक कहाँ कहाँ पे कॉन्सेप्ट्स में याद हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, एंड रिवाइज दोस कॉन्सेप्ट, देन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। डू द सेम फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, देन मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। एंड आई होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग at least 5 to 10 MCQs every day and one subjective question every day. It is not too much. You can join the community, you can join WhatsApp groups जहाँ पे questions share होते हैं. I have also made a WhatsApp group, वो join कर लो, and it will take you hardly 30 minutes. 30 मिनट्स डेली के लगाओगे ना, या 15 मिनट भी डेली के लगाओगे, यू विल easily be able to do 5 to 10 MCQs and one subjective question. And if you do that, आज है तुम्हारी 14th, 15th से भी लेके चलो तो यू हैव 2 months, तुम्हारे 2 महीने में कितने MCQs हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन इफ यू डूइंग 10 MCQs एवरी डे, मोर देन 2 मंथ्स में मोर देन 900 MCQs हो जाएंगे, और 500 तो तुम कर ही सकते हो अगर रोज नहीं भी कर रहे हो। एंड इफ यू डू दैट अमाउंट, तो तुम्हें पेपर देख के बोर्ड का लगेगा ही नहीं कि उसमें कुछ अलग आया है। क्या ही अलग आ जाएगा, 7 चैप्टर है, तुम 500 MCQ कर रहे हो, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो तुम्हारा मिल ही जाएगा पेपर के अंदर। सो if you seriously want to start preparing, if you seriously want to score good marks, then follow a definite pattern, follow a schedule, and एक systematic routine बना लो, एक systematic manner में अपना syllabus खत्म करो पहले, and practice syllabus you already know, you have given your midterms, you have given your PTs, you have given your pre-boards, तुम्हें अभी syllabus का structure पता चल गया है, तुम्हें भी question कैसे आते हैं वो पता चल गया है। The only thing that you need now is practice. The more you practice, the better your marks would be. So keep practicing. In case you have any questions, in case you have any doubts, any request, just comment on this video, or you can join the WhatsApp community, you can send a message to me, whatever suits you. But start preparing now, and all the best for your boards, all the best for your pre boards अगर अभी तक हुए नहीं हैं तो that's it. I'll see you in the next video.
सो नाउ द चैप्टर इज़ ओवर। हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने सबसे पहले पढ़ा था द बेसिक एट्रीब्यूट्स 5 के अंदर क्रिएटिविटी है, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर अबव एवरेज आईक्यू ज़रूरी होगी, राइट। और ये कैसे पता चला? इट वाज फाउंड आउट इन अ रिसर्च कंडक्टेड बाय टर्मन। टर्मन ने 1500 बच्चे पे एक रिसर्च करी थी।